Okay, admin team gave me a heads up that we can start. Let's just start. Give me a couple of minutes. Let me pull up few things. So hi everyone, welcome to the third session. Hope everyone is doing well. Let's start with today's session. So what would be the agenda for today's session? Is anybody aware? I think that's the headline for the session. And most of you might be already knowing what is an EC2, right? So let me real quick share my screen. Do let me know once it's visible, okay? Okay. Is my screen visible, guys? I hope my screen is visible, right? Yes. Yes. Perfect. So once, just give me a second, please. Okay. So let us start then. So we'll see what is EC2. So there's a dedicated cloud trainer who will be taking our cloud sessions, right? Post Linux. But I'll be covering majorly. I'll be covering what is EC2 and the overview to EC2 today, right? And we'll see the practical of EC2 as well. Like some basic things. We'll deploy the instance. We'll take instance in North Virginia. We'll log into the data center. We'll take our own server and see how the things work. So let's start from scratch. So first of all, let's take a like a bit of revision, right? Why do company preferred cloud? And there are three major public cloud provider, or I would say enterprise based cloud providers in the market today. Which are they? Any idea? And why they are in boom? So AWS, partially, GCP, Azure. okay, AWS कर लेंगे हम यहाँ पे, Azure and GCP. Perfect. These are the market leaders in the public cloud today in the market. So this is the product of Amazon. This is the product of Azure. Is the Microsoft. product of Microsoft. Microsoft. बिल भाई साहब, और ये this is the product of Google. 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 Google as in this is not the product of I would say Sundar Pichai. Can you name me a single billionaire? Can you name me a single billionaire who is a graduate? बहुत तीर मार लिया तुम लोगों ने, तो तुम you'll name people like Sundar Pichai, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO. But those are CEO, those are not founders, right? Majority of the founders, right, like Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, these guys are college dropout. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, बट इसका एक और मतलब क्या बनता है? व्हाट डू यू थिंक द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज? सी इन इंडिया ऑफ कोर्स डिग्री इज इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स सम वैल्यू, बट इसका दूसरा मतलब क्या बनता है? अगर ये सारी कंपनीज के अगर आप देखोगे जाके फाउंडर्स और ओनर्स को, these guys are college dropouts, they does not have any degree. अलग दूसरा एक, और तुम्हारे हिसाब से क्या बनेगा बताओ? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, या लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना इंपॉर्टेंट है, तभी आप ग्रो करोगे? टेल मी. लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. Exactly. See why this company, yes, solution provider, why this companies came into boom, right? In fact, this is the first company in the cloud section या फिर IT services जो provide कराती है company. This is the first company who crossed $1 trillion का mark on planet Earth. Can you imagine $1 trillion किसको बोलते हैं?
एंड इसका तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं है इसके सर्च इंजन का. So when the Sundar Pichai was giving interview in 2003 or 4 in Google, which was उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, एट दैट टाइम इसको ना जीमेल पे क्वेश्चंस पूछे थे. एंड यू नो हाउ ही डेवलप्ड बेसिकली. अगर तुमने उसका कोई इंटरव्यू, पता नहीं ऐसे लोगों के तुम लोग वो टेड टॉक्स वगैरह देखते हो नहीं देखते हो, बट इफ यू हियर इंटरव्यूज और पॉडकास्ट ऑफ दीज पीपल, पीपल लाइक दिस, they will always focus on the customer, always focus on the problem area. So one fine day, तुम लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, how these guys develop Google Map, how these guys developed Google Lens. No? Yes, no? किसी ने सुना है वो स्टोरी? No. सो लाइक हाउ सुंदर पिचाई गॉट एन आइडिया कि जीमेल पे काम करते हैं. ये जस्ट एक आइडिया था व्हेन ही वाज इंटरव्यूइंग इन गूगल, राइट? जीमेल वाज जस्ट अ ट्रेडिशनल जो अपनी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे चलता था, वैसा था. सो हाउ दिस गाय डेवलप्ड गूगल मैप, सो व्हेन ही जॉइंड गूगल, राइट, सुंदर पिचाई एंड हिज वाइफ was invited into a friend's house for a dinner. एंड सुंदर पिचाई ने अपनी वाइफ को बोला कि क्योंकि शी वॉज अ हाउस वाइफ एट दैट टाइम, तो इनका तो जो नाइन, अच्छा वैसे और एक चीज़ बता देता हूँ, आई हैव क्लोजली वर्क विद यूएस बेस्ड कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स. सो इनका ना एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट पॉलिसी होता है विच आई फील. इनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तगड़ा होता है यार. दे डू वर्क 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे में अगर इनको तुम कॉल कर दोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़े दुश्मन है नेक्स्ट वीक आने के बाद. बिकॉज दे स्ट्रिक्टली बिलीव कि मैं फैमिली को टाइम दूंगा, इधर गो इन पार्क, बुक पढ़ूंगा, या गो आउट फॉर अ वेकेशन, या फिर आराम से अपना जो शाम को जो वीकेंड जैसे होता है पब वगैरह में, मैं वैसे बिताऊंगा. सो दीज गाइज हैव दैट फिलोसफी. वो वैसा टाइप का इनका ट्रेडिशन है कि 9 to 6 काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, मंडे टू फ्राइडे. दैट्स इट. सैटरडे एंड संडे इज माइन, आई विल गिव इट टू माई सेल्फ. ऐसा इनका ट्रेडिशन पहले से ही चलता आ रहा है. सो सुंदर पिचाई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ डिनर विथ हिज वाइफ. तो सुंदर पिचाई ने बोला कि मैं डायरेक्टली ऑफिस से आता हूँ, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको पहुंचना था. मैं ऑफिस से आता हूँ, यू डायरेक्टली कम फ्रॉम होम एंड वील मीट टुगेदर एट द वेन्यू. अब ये बंदा निकला ऑफिस से, इसको थोड़ा सा टाइम हो गया. हिज वाइफ वेटेड एंड शी लेफ्ट फ्रॉम हर ओन हाउस. ऐसे जाके उसकी वाइफ तो पहुंच गई. बट समहाउ एट दैट टाइम, 20 years 25 years डाउन द लाइन, प्रीवियसली अगर हम जाए, तो गूगल मैप्स वगैरह कुछ होते नहीं थे. सो व्हाट हैपेंड, he struggled so much to find his friend's house because he was also new in US. और पहले ऐसे पता है, कोई भी रास्ता बताता तो मिस गाइड बहुत होते थे, आगे से लेफ्ट ले लो, राइट ले लो. एंड देन सडनली व्हेन ही रीच्ड एट द वेन्यू एट 9, पार्टी थी ऑफ 7 PM, बट ही रीच्ड एट द वेन्यू एट 9 PM. तो वो जब लेट पहुंचा, उसकी वाइफ बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, गुस्से में दे वेंट एंड उनका झगड़ा हो गया. देन ही फिगर्ड आउट कि यार मैं अकेला इंसान हूँ, मतलब जिसको इतनी प्रॉब्लम हुई है एड्रेस ढूंढने में. बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, हर इंसान को कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना रास्ते ढूंढने के लिए. सो द नेक्स्ट डे ऑफिस में उसने अपनी सारी टीम को बुलाया, बिठाया टीम को, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाई, विजन समझाया, एंड देन दैट्स हाउ दे डेवलप्ड गूगल मैप्स. वैसे ही गूगल मैप्स की शुरुआत हुई. देन फिर ऑफ कोर्स एनहांसमेंट होते गए. नाउ गूगल मैप इज वन ऑफ द लीडिंग जीपीएस प्रोवाइडर्स फॉर यू. बिना गूगल मैप के तो हम कहीं पे जा भी नहीं सकते. वरना पहले जो 20 साल पहले हमारा गूगल मैप चलता था, तो वो सड़क पे जो टपरी वाला होता था ना, वो गूगल मैप होता था हमारा, है ना भैया जी, यहाँ से राइट ले लीजिएगा, यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा, दैट वे. सो दैट्स हाउ दीज गाइस फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. Do you know the story behind how Google developed Google Lens? लेंस वाली स्टोरी पता है किसी को? How this guy got an idea to develop Google Lens? किसी को पता है? No. No. So one fine day on one Sunday, this Pichai, his wife and his daughter were having breakfast. उनके घर के ना लॉन के पास में they were having some breakfast. And ओके संकेत, नो इश्यूज. तो ये ब्रेकफास्ट करते करते ना उनके लॉन में शायद कुछ गार्डन वार्डन है ऐसे. तो गार्डन में एक पर्टिकुलर टाइप का एक ये है फ्लावर. सो सुंदर पिचाई की बेटी केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम कि डैड, ये फ्लावर का नाम क्या है. सो ही डिड नॉट हैड एनी आइडिया कि ये फ्लावर का नाम क्या है. तो उसकी बेटी ने थोड़ा सा उसका मजाक में एक इंसल्ट कर दिया कि यू आर अ सीईओ ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड यू डू नॉट नो द मीनिंग और द नेम ऑफ दिस फ्लावर. तो ही टुक इट पर्सनली. अगेन नेक्स्ट डे गया, अपनी टीम को ऑफिस में बुलवाया, बैठाया, एंड देन
उसने ऐसा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं बस वो पर्टिकुलर इमेज का फोटो ले लूं तो उसके बैकग्राउंड या ऑल्टरनेटिव्स में जितनी सारी चीजें मेरे को गूगल से मिलती है उसका डायरेक्टली मेरे को नाम मन के होना चाहिए. दैट्स हाउ दे डेवलप गूगल लेंस. सो आपको पता है क्या गूगल कभी भी है ना क्यों चलता है इतने ट्रेंडिंग कंपनी क्यों है? बिकॉज दे फोकस ऑन द प्रॉब्लम. दे आर द फर्स्ट. लाइक फेसबुक इज द फर्स्ट वन टू डेवलप रोबोटिक्स, राइट? तो हर कोई अपने अपने डोमेन में मास्टर है. नाउ you have to tell me why cloud is in boom. See, cloud जब चालू हुआ 2003 2004 में यूएस में, it became in boom in India after 2010, after a decade almost. But क्यों, why it became such a boom? क्यों ऑन प्रेमाइसिस का और बेयर मेटल का मार्केट खाया इसने? What do you think? We have discussed On this in demand services. last session. Kind of. But अगर logically business language में बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा तो? There are more than 195 countries in the world, I think. Correct? Out of 195, it provides service in 190 plus countries. तो you guys tell me, अगर दुनिया के 95 या 98% कंट्रीज में अगर उसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है अमेजोन आपको, तो ये टूल, ये जो भी टेक्नोलॉजी, ये चलने वाली है कि नहीं चलने वाली? पॉइंट वन. पॉइंट टू, if it is capturing almost 98% of the earth's geography, will this company not generate employments for the people staying there? Of course it will, right? Now you understand the boom of these cloud technologies. See, this is the product of Amazon. Azure भी आजकल कंपटीशन में, इसलिए हमने हमारे सिलेबस में रखा है. जीसीपी बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जीसीपी का एक अपना अलग लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग है. सो इट सर्व्स मोर देन in more than 190 plus countries, and it generate employment for the people staying back in that countries. Now can you let me know the reason why we are primarily looking DevOps on only AWS? मैं चाहूँ तो Azure ले सकता हूँ, बट वाई AWS? बताएगा कोई? डेमो में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है, सो गाइस बी वोकल, बी रिस्पॉन्सिव. Due to the market share. Due to the market share. एक तो है मार्केट शेयर. दूसरी चीज बताओ क्या है? आई थिंक इट सपोर्ट्स, इसके पास ना देर आर मोर देन 200 प्लस सर्विसेज. चेक कर लेते हैं ना, मेरे को भी पता नहीं अभी अपडेट हुई क्या. हाउ मेनी सर्विसेज इन AWS. और सेशन के लास्ट में ना एक बढ़िया तुम्हारे लिए सरप्राइज है. कुछ चीज दिखाने वाला हूँ तुमको व्हाट्सएप से लाइव. खुश हो जाओगे तुम लोग. ये जितने अभी अंडर कॉन्फिडेंट बैठे हैं ना, सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो सी, देयर आर मोर देन 200 प्लस AWS सर्विसेज currently it's offering. So of course ये बात है, अगर ये इसके पास में मोर देन 200 सर्विसेज है तो ये कंपनी और ये टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स चलने ही वाली है, क्योंकि वो प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन देता है. नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी, आई विल सिंपली आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाई डू कंपनी माइग्रेटेड ओवर क्लाउड एंड दे यूज क्लाउड. लिखता हूँ मैं यहाँ पे, व्हाई डू कंपनीज माइग्रेटेड एंड यूज क्लाउड ओवर ऑन प्रेम या ओवर बेयर मेटल एनवायरनमेंट? क्यों किया इन लोगों ने? थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, देन विल डायरेक्टली मूव टू EC2. ठीक है? क्या लगता है तुमको, ऑन प्रेमाइसिस के टक्कर में क्लाउड क्यों माइग्रेट किया होगा इसने? हमने देखा है उस दिन, राइट? तो एक एक One करके of the पॉइंट्स बोलो. reason is one of the reason is pay as you go model too. बहुत बढ़िया. Cost. ये बहुत बढ़िया था. पे एज यू गो. किसी ने बोला कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. कॉस्ट तो And तुमको next, इसमें ही availability. बनेगा. Cloud is हाँ, fully बहुत managed. बढ़िया. अवेलेबिलिटी मतलब अच्छे. करेक्ट. Fully managed. ये एक एक बात में ना, तुमने एक बात में सारे आंसर्स दे दिए दोस्त. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस. क्लाउड इज फुल्ली मैनेज्ड. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक ना प्राइम डिफरेंस देख लेते हैं. देखो, तुम इसमें मेरे को अच्छे बोलोगे, तुम मेरे को इसमें ड्यूरेबिलिटी बोलोगे, सिक्योरिटी बोलोगे, जीरो डाउन टाइम बोलोगे, है ना? ये सब बोल बच्चन जो उस दिन हमने देखे, ये सारे तुम लोग बोलने वाले हो मेरे को, है ना? और उसका एक ही जवाब में किसी ने, एक ही वर्ड में किसी ने आंसर दिया कि भैया क्लाउड इज फुल्ली मैनेज. नाउ व्हाट डू यू थिंक? ये तो करेक्ट है, तुम लोगों ने यहाँ तक तुम पहुंच गए हो. दैट इज वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है सबको. नाउ व्हाट डू यू थिंक वुड बी द डिफरेंसेस? ऑन प्रीमाइसेस चलता है कि नहीं आज के तारीख में मार्केट में? क्या बोला था मैंने उसे?
चलता है, Yes, राइट? चलता है, Yes. And I, चलता and है. I have worked when I was in Cognizant. I worked for more than a year on this on-premises based clusters. Now, कौन मुझे बताएगा जैसे अपना Amazon, Azure और GCP ये मार्केट का गुंडा है, कौन से क्लाउड मार्केट का? ऑन प्रेम का गुंडा कौन है? ऑन प्रेम का राजा कौन है? एनी आइडिया? IBM. देखो, आईबीएम का खुद का प्राइवेट क्लाउड है डेफिनेटली, और ये लास्ट बैच में भी मेरे को आंसर आया था, बट आईबीएम के उतने कस्टमर्स नहीं है, एंड कस्टमर्स। ये मार्केट का गुंडा है ऑरेकल। नाम सुना होगा सबने, Yes. ऑरेकल Yes. सबने, आई थिंक 100% श्योर सबने सुना होगा। सो आई वाज वर्किंग ऑन Oracle based on premises servers. Now, what do you think would be the difference between these cloud companies which offer these services and Oracle? Oracle के पास में आज भी इतने customers on premises पे क्यों है? So for the companies or for the domains like banking, insurance, है ना, ये जो banking और insurance वाले domain है ना, ये कभी भी आपको cloud पे नहीं दिखेंगे 90%. Due These to guys will be, security reason. तो सिक्योरिटी तो मेरी यहाँ पे भी टाइट है, और मेरे मेरे पास में अथॉरिटी है उसकी, लिख लेता हूँ यहाँ पे। सिक्योरिटी मेरे पास में यहाँ पे भी है दोस्त, विथ आई एम रोल्स, आई एम पॉलिसी, आई एम यूजर्स। अभी हाल ही में मेरा कल ही क्लाइंट के साथ ऑडिट हुआ, पता है, सिक्योरिटी पे AWS पे, एंड आई मैनेज टू गिव देम सेशन, ऑडिट दिया मैंने उनको, एंड दे वर हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि सब पे MFA वगैरह लगा रखा था मैंने सारे यूजर्स पे। सो व्हाई डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेम? आज भी क्लाउड कंपनीज को छोड़ के ना, बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले ऑरेकल ऑन प्रेमाइसिस बेस्ड क्लस्टर पे क्यों है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बिजनेस के तरीके में सोचो। बहुत इजी आंसर है, वैसे बताऊंगा तो समझ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपके ट्रांजैक्शन तो वही टपरी पे अपने 100 रुपए 50 रुपए की चाय, ज्यादा से ज्यादा 1000 का बिल बनेगा रेस्टोरेंट में जाओगे तो, है ना? व्हाट डू यू थिंक, जब ये RBI या बड़े बड़े स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक जो है, या मान लो डायरेक्टली RBI का अगर एग्जांपल मैं लूँ, इनके ट्रांजैक्शन क्या लैक्स में होते होंगे, करोड़ में होते होंगे? कैसे होते होंगे इनके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं? guys, these transactions are sometimes in billions, in millions. तो तुमको क्या लगता है, इनका अगर बिलियन और मिलियन में ट्रांजैक्शन है तो इनको कैसा तगड़ा सिस्टम लगेगा ना? अब ऑफ कोर्स सी, व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट एंड Oracle बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस सर्वर, यहाँ पे हमारे पास में उस टाइम का वर्जन बताता हूँ, रेड हैट का 7.6 वर्जन हम लोग प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, एंड ट्रस्ट मी, इट वाज यूजिंग ऑल 120 प्लस कोर्स इन अ सिंगल मशीन। क्यों? भैया, अगर RBI को मिलियन का ट्रांजैक्शन विद इन सेकेंड्स करना है, तो इसको इतना तगड़ा मशीन तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है। अब क्लाउड में प्रॉब्लम क्या है पता है? क्लाउड में अगर आप एक मशीन लेते हो ना, इट हार्डली यूजेस 10 कोर्स। अगर लिनक्स के भी कोर के मैं यूज की बात करूँ ना, तो इट हार्डली यूजेस 10 कोर्स। अब इधर ना एक लॉजिकल डिफरेंस आता है, पता है क्या? इधर जो हार्डवेयर यूज होता है ना, इकोनॉमिक होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक, मतलब चीप। चीप का ही अच्छा वर्ड और बोलूँ ना, तो उसको इकोनॉमिक बोलते हैं। और यहाँ पे जो हार्डवेयर यूज होता है ना, दैट इज व्हाट, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। अब ये स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर क्यों है पता है? स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर बना ही है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। क्या? कि भैया एक मशीन पे तुमको 120 से ज्यादा कोर दे दे वो। क्यों? अरे भाई, तुम्हारे ट्रांजैक्शन जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले, वो होने भी तो उतने मजबूत चाहिए ना। तुमने कभी ऐसा किया है क्या, मतलब आ, कुछ इंस्टेंसेस को छोड़ के कभी तुम्हारा गूगल पे का पेमेंट लटकता है क्या अंटिल द सर्वर इज बिजी? सोचो ना, एक टाइम पे मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल जो गूगल पे, Amazon पे करते हो, फोन पे करते हो, है ना, एंड इट इज वेरी रेयर कि आपका जो पेमेंट है वो लटक जाए, राइट? डू यू नो द रीजन वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग ऑन प्रीमाइसिस बेस्ड servers which are using specialized hardware. Understood the difference between on premises and cloud now? क्लियर है? Yes. परफेक्ट। तो अभी हम बढ़ते हैं। और एक बात, ये जो ऑरेकल बंदा है ना, ये यूज करता है इन्फिनी बैंड नेटवर्क। इन्फिनी बैंड नेटवर्क मतलब ये अपने को कोई पूछने नहीं वाला है, कोई बताएगा नहीं, बट इसके बारे में थोड़ा थियरी जाके पढ़ लो। एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है जो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर पे रन होता है, जिससे ना इनपुट आउटपुट रेशियो जो है ना अपना, बहुत क्विक है, रीड एंड राइट, फास्ट रीड एंड राइट। आप जैसे मान लो किसी ने आपके अकाउंट में 30,000 क्रेडिट कर दिए, एंड आपका अकाउंट बैलेंस था मान लो प्रीवियसली 1 लाख। आई होप वो जल्दी पूरा हो जाए, आप लोगों को उतनी सैलरी मिल जाए।
इमीडिएटली अगर आप सेकेंड्स में कुछ जाके अकाउंट बैलेंस चेक करोगे ना, तो आपके अकाउंट में वो बैलेंस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो डू यू नो हाउ दैट इज पॉसिबल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स? दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटी बैंड नेटवर्क. दैट इज द रीजन ऑन प्रीमाइसिस बेस्ड क्लस्टर पे ना ये राजा है, ये गुंडा है ये मार्केट का. जैसे अपने मार्केट का ये 3 गुंडे हैं. अब ये 3 गुंडों को अपने को पढ़ना है. तो आज के टॉपिक पे आते हैं, विच इज EC2. सबने सुना होगा, किसी ने देखा होगा, सबसे बेसिक और सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट सर्विस है. क्या है बट ये, व्हाट डू यू थिंक? अभी तुम लोगों को पता है हाउ आई ट्राई टू टीच या हाउ आई एक्सपेक्ट द आंसर, तो वो उस फॉर्म में मेरे को आंसर दो. व्हाट इज EC2 इफ एनीबडी नो? It is nothing but the server. आई थिंक नथिंग बट द सर्वर. एब्सोल्युटली परफेक्ट. बट It is a और थोड़ा पहले जाते हैं. हाँ, compute platform. कंप्यूट प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया. बट चलो एक चीज अच्छी है ना, ये बैच में कोई मेरे को Virtual server. फुल फॉर्म नहीं बोल रहा है ना ये बैच में कोई. Elastic हाँ चलो अभी आ गया. Elastic Cloud हाँ तो पहले लिख लेते हो, क्योंकि ये नाम से ना बहुत कुछ जुड़ा है. इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. देखो नाम से ना बहुत कुछ जुड़ा होता है. अपने घर पे मम्मी अपने को अपने नाम से बोलती है, बुलाती है ना, बुलाते हैं जो भी. बट वही हम जब कॉलेज में जाते हैं हमारी बहनों के साथ, तो दे कॉल अस बाय सम डिफरेंट नेम्स लाइक बाबू, शोना एंड ऑल दैट. तो कितना वो रोल के हिसाब से नाम कैसे चेंज होता है, आज हम वही देखने वाले हैं कि EC2 का रोल के हिसाब से नाम कैसे चेंज होने वाला है. तो किसी ने मेरे को बोला कि सर ये है VM. VM मतलब क्या? वर्चुअल मशीन. इसी को सर्वर भी बोलते हैं दोस्त, इसी को होस्ट भी बोलते हैं, इसी को मशीन भी बोलते हैं, और इसी को EC2 इंस्टेंस भी बोलते हैं. जैसे क्या, एक बंदा उसके अलग अलग नाम. जैसे इंटरनेट पे एक बंदा बहुत फेमस है, वो प्लम्बर भी बनता है, वो डॉक्टर भी बनता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन. मेनी रोल्स ही प्लेज, राइट, लाइक एन एक्टर. वैसे ही अगर आप घर पे हो तो आपका रोल एक बेटे का रहेगा, आप कॉलेज पे हो तो आपका रोल एक भैया का रहेगा, राइट. ऐसे टाइप में सेम बंदे को ये अलग अलग नाम से डिफाइन करते हैं हम. तो इंटरव्यू में ना कंफ्यूज नहीं होना है. अगर इंटरव्यूअर सर्वर के लैंग्वेज से कोड कर रहा है ना इस चीज को, तो उसको सर्वर बोल के ही आंसर दो. होस्ट बोल रहा है तो होस्ट इज नथिंग बट माई EC2. ठीक है, मशीन बोल रहा है तो भी EC2, सर्वर बोल रहा है तो भी EC2 अगर क्लाउड पे है तो. ठीक है, और इंडिविजुअल अगर मशीन वर्चुअल मशीन बोल रहा है और ऑन प्रीमाइसेस पे हो तो उसको VM ही बोला जाता है. सो डू यू नो द रीजन व्हाई आर कैंडिडेट्स, जो मैं आज एक सरप्राइज तुम लोगों को देने वाला हूँ ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द सेशन, डू यू नो व्हाई दीस गाइज मैनेज टू टेक ऑफर्स लाइक 20-15? नो, क्योंकि ये आंसर में ना अपने ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, बिजनेस लैंग्वेज यूज करते हैं. वी आर नॉट शोइंग लाइक, हम लोग उनको ऐसे नहीं बोलने वाले कि वी आर फ्रेशर्स. सी ऑफ कोर्स यू कैन बी अ फ्रेशर, बट द थिंग इज आई एम शेयरिंग माई 6 years का एक्सपीरियंस विथ यू. तो एक्सपीरियंस लाइफ में कैसे मिलता है बताओगे? मैंने शायद ये डेमो में बताया भी था. हाउ डू यू गेट एक्सपीरियंस? सो देर आर 2 ways टू गेट द एक्सपीरियंस. सी वन इज प्रैक्टिकली, या तो आप वो परफॉर्म करो या उसमें स्ट्रगल करके आप सीखो. द अदर थिंग इज यू लर्न फ्रॉम समवन एल्सेज एक्सपीरियंस. तो अपने वाले केस में कौन सा है? you're learning someone from else yeah, someone क्या someone, you're learning from my experience, right? So yeah, तो 2 types of experience. एक तो है जो आप खुद एक प्रैक्टिकली, मतलब यू गो थ्रू एंड यू लर्न इट, है ना, तुम सरवाइव करते हो लाइफ में, स्ट्रगल करते हो मेरे जैसा, और फिर बोल बच्चन देने वाले बनते हो. और एक है कि आप ऑलरेडी किसी के बोल बच्चन सुनते हो और फिर आप उससे सीखते हो और आप उसको जाके प्रेजेंट करते हो. तो यू विल गेट माई एक्सपीरियंस, आई डिस्प्ले माई जो भी मेरे को जितना भी साल का एक्सपीरियंस है, थ्रू आउट द जर्नी आई ट्राई टू डिस्प्ले दैट, एंड यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू कोप अप विद इट. कैसे आंसर में इंक्लूड करना है ये सारी चीजें, यू हैव टू मैनेज इट. नाउ व्हाई डू यू थिंक कि EC2, पहले तो मेरे को पूछा ना, मैं तो डेफिनेटली ये बोलूंगा, इट इज वन ऑफ द ऑफरिंग्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय Amazon वेब सर्विसेज. सिंपल, क्या ये मेरे AWS की एक सर्विस है. अब कौन सी सर्विस है ये? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. अब इलास्टिक मतलब क्या, कंप्यूट मतलब क्या, क्लाउड तो अपने को पता है. कंप्यूट का मतलब अगर मैं बोलूँ तो कंप्यूट का मतलब होता है मेजरमेंट. क्या होता है? मेजरमेंट. व्हाट डू यू थिंक इलास्टिक किस कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा इन लोगों ने? इलास्टिक क्यों क्यों कोट किया है इसको इलास्टिक? ऐसे ही रात में. scalable. हाँ हाँ, बहुत बढ़िया. अभी सही ट्रैक पे सोचना चालू किया है तुम लोगों ने. स्केलेबल मतलब क्या? On demand grow, और अगर उसका करेक्ट, कुछ यूज नहीं तो सर्वर करेक्ट. इनकम कर अभी सकते. अभी ना क्या है, इनको रात में
कुछ मंत्र वंत्र का जाप करके तो ये लोग सोते नहीं, जिससे सपना आया और सुबह में मालूम पड़ गया कि ये सर्विस का नाम अपने को इलास्टिक रखना है। नो, ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ना आईटी में, ये बहुत मैटर करता है गाइस। हर नेम के पीछे रीजन है, हम हर चीज वैसे ही सीखने वाले हैं। इलास्टिक का मतलब क्या, इलास्टिक कहाँ से वर्ड आया है? इलास्टिक अपने यूजुअली पजामे के नाड़ों में होता है ना जनरली। अब वो उसका रोल क्या होता है पजामे के, जब नाड़े के जगह पे वो इलास्टिक हम डाल दे, उसका रोल क्या होता है कि अपने जो वेस्ट का साइज है उसकी मेजरमेंट के हिसाब से भैया तो एडजस्ट हो जा। करेक्ट, मतलब हर एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट वेस्ट साइज, है ना, सबकी जो कमर का साइज होता है वो अलग होता है। इलास्टिक क्या करता है, कॉमन सी आप इलास्टिक की पट्टी डाल दोगे पजामे में, वो हर किसी के इंडिविजुअल के मेजरमेंट के हिसाब से स्केल इन भी हो जाएगा, स्केल आउट भी हो जाएगा, मतलब बड़ा भी हो जाएगा छोटा भी हो जाएगा, स्ट्रेच भी हो जाएगा, स्केलेबल भी है, स्केल इन भी हो जाएगा, स्केल आउट भी हो जाएगा। सिमिलरली फॉर माई क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, मेरा वर्चुअल मशीन का जो मेजरमेंट है उसको स्केल इन की भी कैपेबिलिटी दे रहा है और स्केल आउट की भी कैपेबिलिटी दे रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इलास्टिक इन EC2, है ना, नेमिंग कन्वेंशन समझा। अभी थोड़ा सा मेरे को जो चीज़ पसंद नहीं है वो देखते हैं, विच इज थियोरी। थियरी ज़्यादा पसंद आती नहीं है, आईटी में तो किसी को नहीं आती है, बट अभी क्या करें यार, थियरी थोड़ा बहुत समझना पड़ता है ना। सो इन लोगों ने देखो यूआई चेंज कर दिया लास्ट बैच में, जब मैं ये डिस्प्ले कर रहा था तो यूआई वाज डिफरेंट। तो कितने ड्रास्टिक और फास्ट और क्विक चेंजेस हो रहे हैं, देख रहे हो। तो अब ये बैच में तुम लोग एनरोल कर ही रहे हो ना, सो मन बना लो कि तुमको अभी जॉब और ऑफर लेके ही निकलना है डायरेक्टली यहाँ से, है ना। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स सक्सेस मेक नॉइज, वो है ना कुछ कोट ऐसे टाइप का। साइलेंटली वर्क करो, किसी को बोलो मत क्लास ज्वाइन किए, डायरेक्टली ऑफर लेटर लेके जाके मुंह पे मारो, स्पेशली टू द रिलेटिव्स। क्या बोलते हो, है ना। शर्मा जी का लड़का देखो क्या बन गया, तो अभी कोशिश करो कि अपने पेरेंट्स भी ऐसे किसी को बोले जाके। सो Amazon EC2 क्या बोला था मैंने, इज अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड्स रीसाइजेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी, लिटरली सर्वर्स इन Amazon डेटा सेंटर। मतलब क्या बोल रहा है पता है, आज हम लोग करने क्या वाले वो बताता हूँ। किधर गया मेरा शेप, यहाँ पे है। सो आज हम लोग करने क्या वाले बेसिकली, हम लोग ना एक फिजिकल सर्वर है, अभी ये मेरा ना लैपटॉप है जहाँ से मैं ले रहा हूँ, मतलब एक्सेस कर रहा हूँ। यही मेरा VM है, यही मेरा सर्वर है, यही मेरा होस्ट है और यही मेरी मशीन है। क्यूबरनेटिस के लैंग्वेज में अगर बाद में इसको बोलेंगे ना, तो इसको बोला जाएगा बेस्टियन होस्ट, इसको नोड भी बोला जाएगा। बट जब हम क्यूबरनेटिस में आएंगे ना, तो ये दो चीज़ बताऊंगा, अभी के लिए भूल जाओ, अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे लैपटॉप से ना एक वर्चुअल मशीन रहेगा, ये हमारा, ये वर्चुअल तो नहीं है सॉरी, इसको P लिखता हूँ, ये फिजिकल मशीन है, क्योंकि फिजिकली मैं इस पे काम कर पा रहा हूँ, है ना, एक्सेस है मेरे को। मेरे पास में हार्डवेयर का एक टुकड़ा है लैपटॉप नाम का, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसको मैं लैपटॉप कह रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही टाइप का मेरे पास में ना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, विच वुड बी नोन एज माई VM। और ये मैं लॉन्च करने वाला हूँ AWS में, और इसको वर्चुअली मैं लॉन्च करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, वर्चुअली लॉन्च करने वाला हूँ। वर्चुअली मेरे फिजिकल नेटवर्क से मैं इसको वर्चुअल नेटवर्क पे आज कनेक्ट करने वाला हूँ। दैट इज माई Amazon EC2। नाउ लेट्स कम बैक, इसमें मेरे को एक्चुअली जो तुम लोगों को बताना है, आई नीड टू शो यू द प्राइसिंग। पहले इंस्टेंस टाइप देख लेते हैं। सो आई होप एवरी वन माइट हैव विजिटेड दिस डीमार्ट। देखो ये भी चेंज कर लिया है भाई साहब ये लोगों ने, UI थोड़ा। डीमार्ट चेंज किया है, सॉरी डीमार्ट चेंज नहीं किया, सॉरी डीमार्ट, एवरीवन माइट हैव विजिटेड डीमार्ट। तो डीमार्ट में जब तुम लोग गए हो, डीमार्ट में ना दीस गाइस यूज बिजनेस इंटेलिजेंस। डू यू नो हाउ? तो भाई बचपन में मैंने ना मेरे डैड से और मेरे घर वालों से हमेशा ये सुना था कि बनिए का बिजनेस में तोड़ कोई नहीं है। डू यू नो वाई वाई, क्यों ऐसे बोला जाता था? जो मारवाड़ी लोग होते हैं, बनिए लोग, बनिए का दिमाग, क्यों ऐसा होता था कि बॉडी को और ये बनिए लोगों को तोड़ नहीं होता था बिजनेस में कोई? देयर वर नो कंपटीशन, स्पेशली इन ये राशन वाली फील्ड में और मेडिकल वाली फील्ड में। डू यू नो व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन अर्लियर? कौन बोल सकता है? एनी बनियास हियर? नो बनियास? तो देखो मैं बताता हूँ, डीमार्ट वाले ने बनियों की दुकान ज्यादातर के कैसे ठप की है। सो डीमार्ट वाले ने क्या किया है पता है? बिजनेस इंटेलिजेंस लगा है अपने डीमार्ट के अंदर। कैसे?
सपोज, और ये आई थिंक सबके साथ ये प्रैक्टिकल स्टोरी है, इवन इफ व्हेन आई गो टू डीमार्ट टू बाय ग्रोसरी, राशन, ये जो भी मैं लेने के लिए जाता हूँ, लेट्स से अगर मेरा रिक्वायरमेंट है 10 चीजें खरीदने की ना, आई एंड अप बाइंग 20 मोर थिंग्स फॉर मी। तो जो जिधर मेरा एमआरपी पे वो बचा के मेरे को दे रहा है ना, आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर। यू नो व्हाई? क्या रीजन है कि ना सारी चीजें उसने उसके वो क्या बोलते हैं, वो जो छोटा सा मॉल है, वो सारी चीजें उसने उसके वहां पे लाके रख दी है। तो लेट्स से हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, राइट? समबडी गोज इनटू डीमार्ट, जो कपड़े खरीदने के लिए जाता है, कोई है कि कोई ग्रोसरी लेने के लिए जाता है, कोई है राशनिंग के लिए जाता है ना। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, बट डीमार्ट क्या बोलता है, कस्टमर एक बार अंदर घुसा ना, सारी कैसी भी रिक्वायरमेंट रहने दो उसको, यहाँ से चीजें खरीद के ही जानी है। सिमिलरली ये जो है ना, ये अपना क्लाउड का डीमार्ट है। कौन? EC2 क्या? कस्टमर की कुछ भी रिक्वायरमेंट रहने दो, ये देखो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है दोस्त। कैसे? फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन से टाइप का इंस्टेंस लेना है आपको फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस? वी रिकमेंड दैट यूज यूज द फॉलोइंग इंस्टेंस टाइप। मतलब क्या, एक एक देखते हैं। जनरल पर्पस मतलब क्या? इसमें जनरिक वाली चीजें मिल जाएगी आपको, मतलब जनरल रैम मिल जाएगा, जनरल स्टोरेज मिल जाएगा, जनरल जनरल कंप्यूट की कैपेसिटी मिल जाएगी। बट अगर मैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज देखूं, तो सी गाइज, इन डेप्थ तुम्हारे क्लाउड के सेशंस होने वाले, आई एम जस्ट टेकिंग एन ओवरव्यू, और जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ कि कैसे हम एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि डॉकर के लिए जो चीज हमको जरूरी है ना, आई ट्राई टू कवर दैट। सो सी, वन ऑफ द इंस्टेंस टाइप इज कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। अब कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इज डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसेस। मतलब क्या? डेडिकेटेड गेमिंग सर्वर्स। अभी तुम लोगों में से किसी ने अगर वो खेला होगा ना, वो एक गेम चलती थी यार फोन पे बहुत, क्या नाम था उसका? पबजी। जी। देखो PUBG. कैसे कैसे अभी धड़ा आंसर निकल रहे हैं ना अपने वाले इसमें, अपने वाले जोन में। हाँ, तो ये पबजी वबजी के लिए जो लगता है ना EC2 सर्वर्स जहाँ पे डिप्लॉय होते हैं ऑन द फ्लाई, दीज गाइज यूजेस कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस टाइप। और अगर इसका ये देखोगे तुम लोग, अवेलेबल साइज और इंस्टेंस का टाइप वगैरह, तो देखो यहाँ पे दिया होगा। हमारे प्रोडक्शन बेस्ड क्लस्टर पे हम लोग यूज कर रहे हैं C5 2 एक्स्ट्रा लार्ज। ये है मेरे प्रोडक्शन क्लस्टर पे। तो सेम अगर तुमको बोलना है तो बोल दो। दूसरी चीज, और मेरे जो प्रोडक्शन पे क्यूबरनेटिस के वर्कलोड चल रहे हैं ना, T3 2 एक्स्ट्रा लार्ज से भी चल रहे हैं। ये देखो इसमें M5 है। T3 वाली फैमिली जनरल पर्पस में नहीं है क्या? मेमोरी ऑप्टिमाइज में रहेगी फिर। तो वी आर यूजिंग T3 एक्स्ट्रा लार्ज ऑन आर डेवलपमेंट क्लस्टर, और T3 4 एक्स्ट्रा लार्ज ऑन आर प्रोडक्शन पे दो टाइप के नोड्स है मेरे, विंडोज और लिनक्स। तो विंडोज वाले पे हम लोग यो यूज कर रहे हैं, और लिनक्स वाले पे हम लोग यूज कर रहे हैं T3 4 एक्स्ट्रा लार्ज। तो अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो ये तुम लोग बता सकते हो। वैसे ही अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को मेमोरी ऑप्टिमाइज, मेरा ऐसा कोई डेटा है, जैसे बैंकिंग का डोमेन का मैंने एग्जांपल दिया है ना, फास्ट रीड एंड आउट ऑपरेशन चाहिए मेरे को, तो फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड्स के लिए कौन सा सबसे सूटेबल इंस्टेंस टाइप है? तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस ले लो। कैसा वाला? R5 वाली कैटेगरी। तो जो मेरा प्रोडक्शन पे RDS डेटाबेस है ना, वो है R5D एक्स्ट्रा लार्ज। इसमें R5D दिख रहा है क्या? ये देखो, ये है मेरे प्रोडक्शन पे, मेरे ये इंस्टेंस है। RDS पे, डेटाबेस पे कह रहा हूँ, ठीक है? तो सारा मैं मेरा प्रोडक्शन ग्रेड का नॉलेज तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ। वैसे ही अगर स्टोरेज ऑप्टिमाइज पे जाओ, लेट्स से फॉर द एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा तुम लोगों की वो पोस्ट रील्स और तुम लोग पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हो, वो सब तुम लोग जब स्टोर करते हो तो तुमको ज्यादा स्टोरेज लगता है, तो ये टाइप की इंस्टेंस यूज करते हैं। तो एवरी क्लाइंट हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो अमेजोन क्या बोल रहा है भाई, कैसे भी आने दो, एक्सेलरेटेड आने दो, हाई परफॉर्मेंस आने दो, कैसे भी आने दो, मेरे पास में तो सारा प्रोविजन है दोस्त। क्या है मेरे पास में? आई हैव ऑल द प्रोविजन। डीमार्ट में एक बार तू घुसा ना, खाली हाथ तो तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे टाइप का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ये चीज मार्केट में चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है? और चलेगी। इनफैक्ट इसका आंसर चलिए. दो मुझे, वो चल रही है कि नहीं चल रही है? चलेगी। तो बस वो चलेगी, आपको उसको सीखना है, तो आपने उसको सीख लिया, तो आप चलोगे मार्केट में कि नहीं नहीं चलोगे? अरे Yes. सब सब खामोश हो गए यार सब। सेल्फ Yes. बिलीव और कॉन्फिडेंस हाँ। नहीं है क्या? ऑफ कोर्स, सी यू विल आल्सो लर्न। तो अभी ना दोनों क्लाउड में चेंजेस क्या है पता है? अगर इसमें EC2 है ना, तो उधर वहां पे वर्चुअल मशीन नाम की एक सर्विस रहेगी, किधर पे? एज्योर में। बस अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अपना?
सेम रहेगा। अब अगर मेरे को एक चीज तुम लोगों को बतानी है, ये साले ना ये आ जाके यार ये चेंजेस बहुत करते हैं ये लोग यार। EC2 में ही जाता हूँ मैं, मेरे को बताना है फ्री टियर में वो दे क्या क्या रहा है अपने को। तो अगर मैं यूजर गाइड में जाऊँ, आई थिंक T2 माइक्रो दे रहा है। नहीं T2 माइक्रो वो तो मेरे को पता है कौन से इंस्टेंस दे रहा है यार, बट मेरे को जो तुम लोगों को बताना है ना, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट। लेट्स सी, इधर आते हैं नीचे। हाँ, AWS फ्री टियर इधर है ना। तो देखो ये UI अभी पहले का पुराना टाइप का UI ऐसे टाइप का दिखता था। अभी देखो क्या बोल रही है। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क यू बिल्ट अ हाउस, तुम लोग किसी को 12 महीने फ्री रहने दोगे क्या वहां पे नहीं। कि नॉट जा और यूज कर? No. बट ये कंपनीज को ना फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला, $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया है इसने। तो दिस गाय इज गिविंग 12 months फ्री एक्सेस अपने को AWS पे एक्सेस है ना, तुम लोग आज बना लो, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए AWS का अकाउंट आप लोगों को लगेगा। अच्छा ठीक है, 12 महीने की फ्री सर्विस दे रहे हैं। दूसरी बात, Amazon का EC2 750 घंटा फ्री भी यूज कर सकते हो। मान लो आप, लॉन्डो की बात कर रहा हूँ, आपने अगर एक बाइक खरीदी जिसपे आप आपकी बहनों को बैठा के जो भी घूमने वाले हो मार्केट में, आपने किसी को, आप चाहोगे कि आप वो बाइक, जो नई बाइक आपने अच्छी एक्सपेंसिव बाइक ली, आप चाहोगे 12 महीना किसी को फ्री देने? और वो भी 12 महीना फ्री उसको बोल रहे हो यूज करो, और बोल रहे हैं 750 घंटा तू पेट्रोल का भी पैसा मत दे। होगा ऐसे? इज नहीं। दैट पॉसिबल? सी दैट इज द नहीं. मेंटालिटी हम इंडियंस की ना। हमेशा जो जब भी कोई फ्री चीज मिलती है ना सो हमारी मेंटालिटी और माइंडसेट ऐसा ही बन जाता है यार। बट देर आर सम पीपल ये फ्री की चीज देते हैं, बट कैसा, ये मोटा भाई वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, अंबानी वाली। क्या पहले लोगों को फुकट में बांट के ना डिपेंडेंट बना दो उस सर्विस पे, बाद में चार्ज करो। बट बाद में चार्जेस भी कितने, बहुत मिनिमल। और यहाँ पे आके नीचे देखोगे ना, यहाँ पे नहीं, इंस्टेंस टाइप में बताऊंगा तुमको। चार्जेस इज लाइक क्वाइट मिनिमल, सेंसेस में कटता है पैसा। तो तुम बताओ, 12 महीने की प्रैक्टिस के लिए फ्री, 750 घंटा फ्री। बट इस पे भी लिमिटेशन है, वो आगे हम देखेंगे, और वो लिमिटेशंस में ही हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक के सेशन में मुझे याद दिलाना, आई ब्रिंग दैट लिंक विथ मी हैंडी, जहाँ पे मैं $300 के क्रेडिट तुम लोगों को बताऊंगा। सो लेट्स से इफ आई एम साइनिंग इन टू माई कंसोल, $300 का क्रेडिट फ्री में हम यूज करेंगे। तो देखो मेरे पास सलमान खान का अकाउंट है, सलमान खान भी AWS पे, पता है तुम लोगों को? यू नो दैट? सी, सलमान बॉय का अकाउंट है अपने पास। क्लाउड वर्ल्ड यार, वेलकम टू क्लाउड वर्ल्ड। छोटी मोटी चीजों में डील नहीं करते ना। जोक्स अपार्ट गाइस, ये हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट का अकाउंट है, ठीक है? अगर सलमान का अकाउंट होता है तो यहाँ पे गैलेक्सी लिख के आता ना। क्या लिख के आ रहे हैं देखो, क्लाउड वर्ल्ड %20 इंस्टीट्यूट। ये क्या है? ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो इफ आई गो टू बिलिंग एंड कॉस्ट, लास्ट आई थिंक बैच में मेरे पास कुछ $250 के क्रेडिट्स तो थे अवेलेबल। अभी देखते हैं कितने बचे हैं। तो इफ आई क्लिक ऑन क्रेडिट्स, देखो आराम से मेरा $7-8 के ऊपर भी होता नहीं है फॉर प्रैक्टिस। उल्टा मैं तो प्रोडक्शन बेस्ड के मशीन्स लेता हूँ। तो सी आई हैव $125 रिमेनिंग, और ये मेरा एक्सपायर कब हो रहा है? 12/31। तो ये ना मैं लिंक्स शेयर करता जाऊंगा तुम लोगों को, जब भी तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी। ऐसे टाइप के क्रेडिट्स तुम लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। तो तुम लोगों ने अगर कोई पेड वाली सर्विस भी यूज कर ली, सो इट विल नॉट चार्ज यू फॉर दैट। ये अमाउंट, क्रेडिटेड अमाउंट में से वो वेव ऑफ होता रहेगा, ठीक है? सो नाउ दिस इज माई AWS का अकाउंट। आज घर पे जाके AWS का अकाउंट बना लेना है सब लोगों ने। यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे जब सर्विसेज में आओगे, इफ आई क्लिक ऑन ऑल सर्विसेज, एक्चुअली ऐसे व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? ये 200 प्लस जो मैंने बोला था, ये क्या है? EC2 सर्विसेज। लाइट से, सर्विसेज। Services. सर्विसेज। सर्विसेज। तुम लोग इसको तुम लोग इसको एज अ सर्विसेज देखते हो, राइट? यू सी दीज थिंग्स एज सर्विसेज। टेक्निकली यू आर 100% करेक्ट। डू यू नो कंपनीज क्या देखती है इसको, कंपनी किस एंगल से देखती है इसको? These are the problems. वेरी गुड, परफेक्ट। सो फॉर कंपनीज दीज आर दी प्रॉब्लम्स गाइस। मतलब these आर नॉट दी प्रॉब्लम्स, एक्चुअली दिस सर्विसेज कंटेन्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो अगर ये कंपनी के Solutions. प्रॉब्लम का अगर तुमको ये सोल्यूशन आ गया,
तो तुमको जॉब मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है? ऑफ कोर्स Definitely. मिलने वाली है, डेफिनेटली Yes. मिलने वाली है. सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैड उसने उसका जो एजुकेशन है, ही डिड फ्रॉम मराठी मीडियम. ही गेव मी अ कॉल. सिर्फ AWS की बात कर रहा हूँ मैं. तुम लोगों को डेवऑप्स वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ. ही कॉल्ड मी इन 2022 एंड लेट मी टेल यू, ही इज फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन बेस्ड बैकग्राउंड. वो उसके फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभाल रहा था. एंड they both were working on a construction site near Eon IT Park. पता है किसी को खराड़ी में? बहुत बड़ा IT पार्क है. Yes, पता है. I started my career from there. I joined in a BPO. जहाँ पे I started my career from BPO. Can you imagine that? Emphasis करके एक कंपनी है. I started from there. I worked 3-4 months and फिर छोड़ दिया मैंने IT के लिए. सो वहाँ पे ना उन लोगों की कंस्ट्रक्शन साइट कुछ तो भी चालू थी. एंड ही वाज दिस गाय वाज रियली फैंटेसाइज्ड बाय द कंपनीज एंड बाय द कल्चर एंड बाय द एनवायरनमेंट जो आईटी में होता है. क्योंकि आईटी का एनवायरनमेंट पता है ना, ब्रेक मिल गया, बाहर आओ, मैनेजर के साथ छुट्टा उट्टा मारो, है ना. तो इसको भी वो सारा एनवायरनमेंट बहुत पसंद आ गया और वो फैंटेसाइज्ड हो गया. कहने लगा कि अभी मेरे को आईटी में करना ही है. कैन आई डू इट? तो गाइस, दिस गाय वाज फ्रॉम अ मराठी मीडियम बैकग्राउंड. और उसका बैकग्राउंड ऐसा था ना, उसने कभी लैपटॉप को टच भी नहीं किया था. सो ही कॉल्ड मी इन 2022 और उसने मुझे बोला, यार मेरे को आईटी में कुछ करना है, बता मैं क्या करूँ. तो मेरे को पता था कि इससे डेवऑप्स वगैरह तो जल्दी से होना नहीं है. ठीक है, तो आई सजेस्टेड हिम टू डू ओनली क्लाउड. मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ क्लाउड अच्छे से भी किया तो जॉब लगती है कि नहीं. सो सी ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल. दैट गाय टुक मोर देन अ ईयर. 2022 एंड में ही कॉल्ड मी इन December. By the end of 2023 he got an offer letter of 9.5 lakh. पढ़ा था उसने अमेजोन, जॉब लगी उसको एज्योर पे. सी इट इज फाइन, ही टुक मोर देन अ ईयर क्योंकि उसका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं था. बट डोंट यू थिंक कि उसने जॉब लिया, राइट ऐसे बैकग्राउंड का बंदा जिसने कभी लैपटॉप को टच भी नहीं किया है. दैट टू ही केम फ्रॉम अ मराठी मीडियम बैकग्राउंड जहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर, लैंग्वेज बैरियर बहुत था. तो जिसको भी एक क्वेश्चन होता है ना कि सर आई कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है. दोस्त आईटी में ज़्यादा कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता है. अगर कम्युनिकेशन और इंग्लिश अच्छी हो तो पैकेज अच्छा लेने के लिए हेल्प करेगा. वो भी 2-3 लाख का फर्क गिरेगा, एचआर को पटा सकते हो अच्छे से. बाकी टेक्निकल लेयर पे अंदर ना आपकी कम्युनिकेशन कोई नहीं देखने वाला है. क्या देखने वाले हैं? आपकी टेक्निकल स्किल्स. तो सिर्फ क्लाउड भी अच्छे से पढ़ा ना दोस्त, क्यों? 200 सर्विस है 190 प्लस कंट्रीज में, तो ये फुल्ली मैनेज्ड भी है. तो इसमें तो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा नहीं करेगा, बताओ. बट सिर्फ AWS पे जॉब लिया तो 10 लाख, डेवऑप्स प्लस AWS पे जॉब लिया तो 15 लाख, 20 लाख. तो द चॉइस इज योर्स. सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स. एंड इफ यू नो द सर्विसेज, सो यू हैव द सोल्यूशन, देन ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू टेक द जॉब. नाउ EC2 पे मैं जाता हूँ. Like I said, EC2 is one of the offerings or one of the services provided by AWS Cloud. Now, ये मेरा EC2 का ना ग्लोबल व्यू का डैशबोर्ड घर पे जाके देख लेना, कुछ नहीं है, यही चीजें बताएगा. नाउ सी देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स. यहाँ पे एक एक चीज लाइन बाय लाइन समझेंगे. ओवरव्यू दूंगा मैं बेसिकली, डेप्थ में तो आप लोगों का बाद में कवर होने ही वाला है. तो देखो यहाँ पे ना रीजन है. कौन बता सकता है मुझे रीजन मतलब क्या? जियोग्राफिकल एरिया. बढ़िया. मतलब क्या? जिधर पे मेरा डेटा सेंटर क्या है, डेटा होस्टेड है. लोकेटेड. होस्टेड है, लोकेटेड है. अब देखो यूएस की कंपनी है, जेफ बेजोस, तो भैया यूएस के, ये तो यूएस में उन्होंने अपनी पसंदीदा 4 जगहों पे उन्होंने डेटा सेंटर खोल दिए हैं. ठीक है. अभी तुम बोलोगे इंडिया में नहीं है क्या? तो दोस्त इंडिया में है ना, मुंबई. नीचे अगर मैं आऊँ, हैदराबाद के लिए भी काम चालू है, देख रहे हो. बट यस. हैदराबाद में किधर रहेगा वो आप लोगों को नहीं पता. देखो मेरा जो डेटा सेंटर है ना, मेरा जो क्लाइंट, मेरा क्लाइंट यहाँ का है, मिडल ईस्ट. ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, किसी को बताना मत. वन ऑफ माई क्लाइंट इज इन बहरीन एंड द अदर क्लाइंट, जो दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है, दैट इज होस्टेड इन यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, क्योंकि वो यूएस का क्लाइंट है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूएस के नॉर्थ वर्जीनिया के डेटा सेंटर के अंदर आज एक मशीन लेने वाले हैं. गोरो के घर में जाएंगे हम. क्यों? हम पे उन्होंने थोड़ा सा राज किया है ना, अराउंड 150-180 ईयर्स जो भी है, 200 साल जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. आज हम भी उनको थोड़ा सा लूटने वाले हैं. तो आज हम कहाँ पे जाएंगे? गोरो के कंट्री में, दैट इज नॉर्थ वर्जीनिया. दिस इज वन रीजन. क्या लगता है दूसरा रीजन क्या है मेरे पास में? नॉर्थ वर्जीनिया में मैं क्यों इंस्टेंस लेने वाला हूँ आज?
आई हैव ऑप्शन लाइक मुंबई, आई हैव ऑप्शन लाइक सिंगापुर, ये सारा, ये एशिया वाले ऑप्शन भी है मेरे पास, नजदीक वाले। इतना दूर क्यों जा रहा हूँ मैं? पहली बात तो टिकट लग रहा है क्या मेरे को यूएस जाने का? वीजा लग रहा है क्या? नो राइट। बट ये आंसर नहीं है, दूसरा आंसर है, बताओ क्या? सो माय फ्रेंड्स, यूएस का टाइम जोन किसको पता है? कौन से टाइम जोन में काम करता है यूएस? CST। ईएसटी यानी कि ईस्टर्न टाइम जोन। अपने से 9.5 घंटा पीछे होता है। तो अपने दिन मतलब उनकी क्या हो गई? नाइट। करेक्ट। तो बिजनेस जो है कोई भी कंट्री में, वो डे टाइम में चलता है कि नाइट टाइम में चलता है? डे टाइम में। तो मुंबई में अपने बिजनेस आ जाइए 9 to 6। तो अगर मैं मुंबई में सर्वर लेने की कोशिश करूँ, डेफिनेटली मिल जाएगा। बट ना हॉपिंग वगैरह वो नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट है, हॉपिंग। हॉपिंग वगैरह ज़्यादा रहने के वजह से ना कभी कभी हो सकता है कि हमको लेटेंसी मिल जाए, सर्वर नहीं मिल जाए स्पॉट पे। दैट इज द रीजन, क्योंकि ये ऑफ बिजनेस आज है यूएस नॉर्थ वर्जीनिया के। आई विल बी टेकिंग माई सर्वर एंड लॉन्चिंग इट इन यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, विच इज द डिफॉल्ट रीजन इन अमेजोन का AWS क्लाउड। जब भी आप लॉग इन करोगे ना, तो ये डिफॉल्ट रीजन यहाँ पे ही ओपन होता है। आप इसको जाके सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो, बाय द वे, ठीक है? तो ये समझ गया नाउ। इंस्टेंसेस मतलब क्या? इंस्टेंसेस मतलब क्या, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है आपको। सी दिस इज नथिंग बट माई इंस्टेंस। क्या है? मेरी वर्चुअल मशीन को ही मैं इंस्टेंस बोल रहा हूँ। सी यहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो मतलब मेरी मशीन, अब मेरे पास में मशीन कोई डिप्लॉयड है क्या? रनिंग में कोई मशीन है क्या? तो बोल रहा है 0। ठीक है। अभी इंस्टेंस टाइप पे आ जाते हैं, जो हमने देखा था बेसिकली। थोड़ा लोड होने टाइम ले रहा है। सो देखो, इंस्टेंस टाइप मतलब क्या? ये देखो कि मेरा ये मशीन है, इसमें मेरे को एक वर्चुअल सीपीयू देगा, वो 0.6 gigs की मेमोरी देगा, है ना। नेटवर्क परफॉर्मेंस अगर ये फ्री वाला है तो बहुत लो है, और इसके चार्जेस देख लो दोस्त, जीरो पॉइंट जीरो अरे जीरो फाइव हेलो, यस। मुझे एक क्वेश्चन है। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है, हम्म। इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि ये उसका डायमेंशन बताओ, ऐसा कुछ पूछते हैं क्या इंटरव्यू में? डेफिनेटली मतलब पूछेंगे। सपोज क्या T2 पूछेंगे माइक्रो पता या। है? हाँ, क्या पूछेंगे हाँ। पता है? मैं समझ गया क्वेश्चन आपका। इसीलिए मैंने क्या किया स्टार्ट में, मैंने आई वाज डिस्प्लेइंग यू द इंस्टेंस टाइप्स। मैंने क्या बोला आपको कि देखो, वेरी गुड क्वेश्चन है बाय द वे, सबके लिए। ये बहुत बड़ी सीख दे रहा हूँ आज मैं तुमको। क्या होता है, मेनी ऑफ द टाइम्स ना पीपल गिव द आंसर्स टू द डिफिकल्ट टेक्निकल क्वेश्चंस, बट इंटरव्यूअर को जब डाउट आएगा ना तुम पे कि झूठ बोल रहा है, अभी इसको पकड़ना है, मेरे को फिल्टर करना है, देन ना वो अपने को बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में उलझाता है। और कभी कभी क्या होता है, अच्छे अच्छे तगड़े वाले टेक्निकल आंसर दे देते हो, छोटे मोटे फुद्दू क्वेश्चन पे हम लोग ना ये कर देते हैं, पानी फेर देते हैं। मतलब क्या? अभी जैसे उसको डाउट आया, जैसे तुमने मेरे को क्वेश्चन पूछा, अभी मैं तुमको पूछूंगा कि तुमने अपने प्रोडक्शन क्लस्टर पे कौन से टाइप का इंस्टेंस लिया है। अब तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं T2 माइक्रो पे, बट जब हम क्यूबरनेटिस पे जाएंगे वी विल प्रैक्टिस ऑन T3 मीडियम, C5 एक्स्ट्रा लार्ज पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए मैंने जब EC2 चालू किया, मैंने क्या बोला, मेरे प्रोडक्शन पे ये दो चीज यूज हो रही है, तो बस वो दो चीज बता दो, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, उसमें अगर वो पूछेगा कि मेमोरी कितना यूज कितना करता है, तो बोलना देखो मैं क्लाउड इंजीनियर तो हूँ नहीं, ज़्यादा कंसोल पे खेलता नहीं हूँ, पर अगर तुमको फिर भी जाना है तो मैं अभी ऑनलाइन जाके 2 मिनट में चेक करके बता सकता हूँ। क्योंकि आईटी में एवरीथिंग इज कॉपी एंड पेस्ट, कोई मेमोराइज नहीं करता है यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलना है उसको। अंडरस्टूड अरुण? यस यस, गॉट इट गॉट इट। तो ऐसा बताओ, T3 2 एक्स्ट्रा लार्ज बता दो और C5 2 एक्स्ट्रा लार्ज बता दो। अगर दो यस इंस्टेंस टाइप गॉट। बताना है, या फिर दोनों में से कोई एक बता दो, दैट इज फाइन। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो दूसरा यूएस का प्रोजेक्ट है उस पर मैं T3 मीडियम भी यूज करता हूँ। क्यों? जितना बड़ा मशीन लोगे दोस्त, ये 16 GB मेमोरी है, 4 वर्चुअल सीपीयू है, मेरे प्रोडक्शन ग्रेड पे ये चल रहा है देखो। टू T3 क्या बोला मैंने, 2 एक्स्ट्रा लार्ज ना, T3 2 देखो, 8 CPU है, 32 GB का रैम है। तो दोस्त अगर ये है, मेरा कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो क्लाइंट ये भी देखता है कि तुम उसके पैसे कैसे बचा सकते हो। तो जो काम मेरा T2 मीडियम में चलने वाला है, उसके लिए मैं T2 2 एक्स्ट्रा लार्ज लूंगा क्या? एट द एंड क्लाइंट का पैसा बढ़ेगा, राइट? द होस्ट म्यूटेड मी। होस्ट नाराज हो गया यार मुझसे। परफेक्ट, तो समझ गया। घर पे जाओ, थोड़ा सा ये डिटेल्स चेक करो। डिटेल्स एज इन, अगर मैं T2 2 एक्स्ट्रा लार्ज की मशीन ले रहा हूँ, इंस्टेंस फैमिली है मेरी T2,
साइज है मेरा ये, हाइपरवाइजर है ये, हाइपरवाइजर क्या होता है, कैसे चलता है, ये सब बताने वाले, डोंट वरी। इसके बाद में मैं इसकी कंप्यूट की कैपेसिटी देखूँ, फ्री टियर है क्या ये, नहीं। दोस्त फ्री कितना देगा तुम लोग को यार, बस करो अभी। फ्री मतलब क्या सारे ही धंधा बंद करके बैठ जाएगा क्या अपने लिए, नो राइट। उसके बाद नेटवर्किंग में आओ, ये कितने अवेलेबिलिटी जोन, अच्छा मेरे को कौन डिफरेंस बताएगा अवेलेबिलिटी जोन और रीजन में डिफरेंस क्या होता है, जिसने भी क्लाउड पढ़ा है। अवेलेबिलिटी जोन क्लाउड के रीजन के अंडर आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोकेट मतलब होता है। अब मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हो ना कि पुणे के अंदर अगर मेरा डेटा सेंटर है तो 3 अवेलेबिलिटी जोन में मैं उसको डालूंगा। एक खराड़ी, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, टीसीएस अभी अलग अलग जगह है राइट, टीसीएस येरवाड़ा में भी है कॉमर्स जोन में, हिंजेवाड़ी में भी है, और एग्जांपल के लिए पकड़ लो मगरपट्टा में भी है, राइट। तो तीनों में से कोई भी अवेलेबिलिटी जोन यानी कि कोई भी ऑफिस में वो तुमको बुला सकते हैं, अंडरस्टूड। जैसे अभी कॉग्निजेंट Yes. बुला रही है, देर आर मेनी पीपल वर्किंग इन कॉग्निजेंट दीज डेज, और कॉग्निजेंट की बहुत हालत खराब है। तो कॉग्निजेंट से अगर कॉल आती है तो मुझे पूछे बिना ज्वाइन मत करना, ठीक है। स्टोरेज देख लो, स्टोरेज हम देखने वाले हैं, प्राइसिंग देख लो। $0.4 मतलब दोस्त $1 भी नहीं, सेंसेस में हार्डली 10-15 रुपए घंटे में तुम्हारा काम चल रहा है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, जो काम तुम्हारा 10-15 रुपए में चल रहा है उसको तुम लाखों रुपए दोगे क्या। अभी समझो ऑन प्रीमाइसिस के टक्कर में ये क्लाउड क्यों ज्यादा चलता है, बट अगर तुम्हारा यूज केस और तुम्हारा कस्टमर बैंकिंग वाला है तो ये भी चीज तुमको पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव अहेड। लॉन्च टेम्पलेट्स मतलब क्या, इंस्टेंस टाइप्स तो समझ गया कि कैसे अलग अलग टाइप के इंस्टेंस मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने हैं उतने मैं उसमें से चूज कर सकता हूँ। लॉन्च टेम्पलेट मतलब क्या, दैट्स से तुमको अगर खुद का एक क्लस्टर बनाना है, एज इन एक मशीन की सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के 100 मशीन चाहिए मेरे को, तो तुम लोग हर बार जाओगे, इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, उधर से लॉन्च विजार्ड पे जाओगे, मशीन चूज करोगे, और ऐसे 99 मोर टाइम्स यू विल डू इट। आईटी में ये गधा मजदूरी का काम नहीं होता है, आईटी में पता है वैल्यू किसकी है, हु नोज ऑटोमेशन। एंड डेवऑप्स इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑटोमेशन। अभी तक डेवऑप्स पे हमने टच नहीं किया है बट डेवऑप्स टच करने वाले हैं हम जल्दी। डेवऑप्स इज all about automation. It is all about automating your software development life cycle. It is all about automating your CI/CD, all about automating your deployment, containerization. तो DevOps is all about automation. तो DevOps के लिए जितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड है ना क्लाउड में, वो सारी सीखने वाले हैं हम, क्योंकि DevOps अल्टीमेटली ये वर्चुअल मशीन पे ही चलने वाला है। लॉन्च टेम्पलेट क्या कह रहा है देखो, यूज टू ऑटोमेट इंस्टेंस लॉन्चेस, मतलब क्या, इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए जो ऑटोमेशन की जरूरत है ना, एक टेम्पलेट बनाऊंगा मैं, बोलूंगा मेरे को 100 टाइप के एक इंस्टेंस ना, एक ही टाइप का इंस्टेंस ऐसे 100 मशीन चाहिए, एक सिंगल क्लिक में मैं डिप्लॉय कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अभी पुणे के अंदर दिन में कितनी सारी एक्टिवास बिकती होगी, तो अभी क्या बजाज वाला हर किसी के लिए जाके अलग कस्टमाइज एक्टिवा डेवलप करता है क्या, नो राइट। वो एक बल्क में ऑर्डर उठाते हैं, बल्क में एक्टिवा लाते हैं और शोरूम पे डिलीवर करके जाते हैं। सिमिलरली ये लॉन्च टेम्पलेट हमारा वर्क्स इन दैट फैशन। नाउ स्पॉट रिक्वेस्ट मतलब क्या, स्पॉट रिक्वेस्ट मतलब सट्टा, सट्टा नहीं सॉरी, इसको मैं बिडिंग बोलूंगा, बिडिंग कोई सट्टा बोलते हैं क्या, नहीं नहीं बिडिंग नहीं, ऑक्शन को बोलते हैं, है ना। ऑक्शन मतलब क्या, मतलब मान लो जितना ज्यादा तुमने बिड किया वो इंस्टेंस पे, उतने कम पैसे में तुमको और उतने ज्यादा टाइम के लिए वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम ये देखने नहीं वाले हैं। अगर विद इन दैट ड्यूरेशन अगर किसने तुमसे ज्यादा बिड कर लिया ना, ज्यादा पैसे लगा लिए, तो वो इंस्टेंस तुरंत टर्मिनेट होकर उसके पास चला जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे प्रोडक्शन ग्रेड क्लस्टर के लिए स्पॉट रिक्वेस्ट सूटेबल ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली नॉट। फिर No. कौन से टाइप के क्लस्टर के लिए या कौन से टाइप के एनवायरनमेंट के लिए सही है। टेस्टिंग, टेस्टिंग के करेक्ट, लिए। मतलब लोअर एनवायरमेंट्स। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना, अगर तुम्हारे लोअर एनवायरनमेंट एक से ज्यादा है ना, डेव हो गया, स्टेजिंग हो गया, यूएटी हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्री प्रॉड हो गया, प्रॉड -1 हो गया, ये सबको लोअर एनवायरनमेंट्स ही बोलते हैं। और हायर एनवायरनमेंट सिर्फ एक होता है, कौन सा, प्रोडक्शन। तो अपने को किधर काम करना है, प्रोडक्शन में। समझा स्पॉट रिक्वेस्ट। सेविंग्स प्लान मतलब क्या, इधर तुम, एक्चुअली मेरा एक जो प्रोजेक्ट है ना उसमें हमने ये सेविंग्स प्लान कर रखा है, उसमें हमने क्या किया बेसिकली, इंस्टेंसेस को ना रिजर्व करके रखा है। मतलब क्या, अभी मान लो मेरे को पता है कि मेरा क्लाइंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ 3, अभी मैंने तुमको शायद हायरार्की बताई नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब होती है ना उसमें प्रोजेक्ट कैसे आता है पता है आपको, ट्रांजिशन कैसे होता है, प्रोजेक्ट कंपनी कैसे कैसे कंपनी के पास प्रोजेक्ट आता है वो पता है क्या आपको। लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ दैट। तो क्या होता है,
when I was working for Tech Mahindra, there were 3 other companies, 3 major MNCs, जो प्रोजेक्ट था हमारा यूएस का उस पे बिडिंग कर रही थी। कोटेशन देना पड़ता है कंपनीज को, तो उनमें से एक कंपनी का नाम था टीसीएस। एक्सेंचर भी नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इट्स अ वेरी मेजर बिग कंपनी, बहुत बड़ी एमएनसी है। सो टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, एमडॉक्स और क्या नाम बोला मैंने, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये 4 कंपनी है ना। वो जो प्रोजेक्ट आने वाला था, जो आया था टेक महिंद्रा के पास, उस पे बिड कर रही थी। मतलब क्या, अपना अपना कोटेशन दे रही थी। अब मान लो आपको घर बनाना है, आपने ना डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को या आर्किटेक्ट को कोटेशन दिया है, विच वन यू विल चूज? लोअर। लोअर नहीं, जो Lower कम cost. पैसे में बेस्ट सर्विस दे रहा है अपने को। Yes. करेक्ट। तो टेक महिंद्रा चिंदी चोरी करके उन्होंने कम पैसों में बेस्ट सर्विस देने का कमिटमेंट दे दिया, उनका कोटेशन फाइनलाइज हो गया। फिर लीगल टीम बैठती है, दोनों क्लाइंट की लीगल टीम बैठेगी, कंपनी की लीगल टीम बैठेगी, इनका डॉक्यूमेंटेशन होगा 2-3 महीने, फिर एसओडब्ल्यू साइन होगा। एसओडब्ल्यू मतलब क्या, स्कोप ऑफ वर्क, जिसमें आपको ना P1 का एसएलए कितना है, P2 का एसएलए कितना है, एस्केलेशन पे आपको कितना टिकट पे चार्ज देना पड़ेगा, अगर कस्टमर का डाउन टाइम आया तो टेक महिंद्रा को पेनल्टी कितनी बैठेगी, है ना। और समझो अगर 8 रिसोर्स की जरूरत है टेक महिंद्रा को प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो क्लाइंट के पास जाके वो बोलेंगे मेरे को 50 रिसोर्स चाहिए, 50 रिसोर्स की बिलिंग लाएंगे वो लोग। दूसरी बात, वो लोग उधर से उठाएंगे पैसा डॉलर में और तुमको इधर देंगे आईएनआर में। मतलब समझ रहे हो तुम, एक बंदे का बीपीओ में 1 घंटे का जो चार्ज है ना, वहां से वो लोग उठाते हैं $80। और पता है तुमको कितना मिलता है? तुमको $5 से $10 भी नहीं मिलता है पर आवर। वो भी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को बोल रहा हूँ। अब समझा कंपनी है, बिलियंस में मिलियंस में जो ये रेवेन्यू निकलता है इनका क्वार्टर वाइज क्यों निकलता है, ऐसे टाइप की चिंदी चोरी करते हैं लोग वहाँ पे। सो उसके बाद में एसओडब्ल्यू साइन होता है, फिर आपके ट्रांजिशन मिलते हैं, वो लोग आपको केटी देते हैं, फिर रिवर्स केटी चलता है, फिर जाके प्रोजेक्ट चालू होता है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट चालू होता है ना, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। तो मान लो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ना 72% ऑफ मेरे को मिलेगा। कब मिलेगा पता है? अगर मैं वो इंस्टेंस को रिजर्व करके रखता हूँ। मान लो जैसे हमने देखा था ना गूगल डेटा सेंटर, गूगल डेटा सेंटर, स्टूडियो क्या बोल रहा है यार, डेटा सेंटर बता। अगर मान लो मेरे को पता है कि मेरे को ये डेटा सेंटर के अंदर मेरे क्लाइंट का काम करने के लिए ये पूरा क्लस्टर चाहिए। देखो इनिशियली तो नहीं लगेगा, क्योंकि इनिशियली जब प्रोजेक्ट आएगा तो बहुत कम बिजनेस रहेगा, तो 2 नोड में मेरा काम चल जाएगा। बट मेरे को पता है 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन पूरा क्लस्टर लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ ऑन द फ्लाई पेमेंट देने के ना, ये पूरा रिजर्व करके रखूंगा। उसको क्या बोलूंगा मैं पता है, भाई तू ये पूरा क्लस्टर मेरे नाम पे करके रखता है, उसको मैं परचेस करूंगा। अभी जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है यूएस वाला, उसमें ना क्लाइंट को पर मंथ, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है वो, मैं अकेला ही एज अ डेवऑप्स लीड उसको लीड कर रहा हूँ, तो पर मंथ ना उनको $6,000 का बिल लग रहा है। तो जब हमने परचेस किया ना रिजर्व इंस्टेंस 1 साल के लिए, तुमको पता है कॉस्टिंग कितना हो गई? सीधा सीधा हमको $2,500 का फर्क पड़ा। तो ऐसे अगर तुम क्लाइंट के पैसे बचाने का सोचोगे, तो तुमको जाने देगा या बोलेगा भाई तो इधर ही रुक। तो आजकल इंडस्ट्री में ना क्लाउड बेस्ड पे और एक टर्म चल रहा है जिसको बोलते हैं फिनॉप्स। तो हम ना हमारे करियर सॉरी ये जो करिकुलम है ना, इसके बीच में थोड़े थोड़े फिनॉप्स वाले चीज भी देखने वाले हैं। फिनॉप्स मतलब क्या? फाइनेंशियल ऑपरेशंस। मतलब क्या? फाइनेंशियली ऑप्टिमाइज करके दे रहे हो आप क्लाइंट को। फिनॉप्स की भी ओपनिंग बहुत है हाँ आजकल। तो रिजर्व समझ में आया। डेडिकेटेड होस्ट मतलब क्या, कि भाई मेरे को ना डेडिकेटेड होस्ट चाहिए। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन के मेरे को डेडिकेटेड 10 मशीन चाहिए तो चाहिए, तो उतने तू मेरे को हमेशा होस्ट अवेलेबल करके दे। दैट इज नथिंग बट योर डेडिकेटेड होस्ट। अभी कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब क्या? कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब ऑन डिमांड इतने मेरे को सीपीयू चाहिए, इतनी मेरे को मेमोरी चाहिए, इतना मेरे को कंप्यूटेशन पावर चाहिए, सिंपल। वो कैपेसिटी को मैं एक मशीन के लिए रिजर्व करके रख रहा हूँ। बट ये अगर आप ये सब जाते हो ना, डेडिकेटेड होस्ट लेते हो, कैपेसिटी रिजर्वेशन लेते हो, तो आपको कॉस्टिंग में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपना जो सबसे मेन चीज है एएमआई। हु नोज व्हाट इज एएमआई? स्नैपशॉट। नहीं, स्नैपशॉट तो इज अ डिफरेंट थिंग, स्नैपशॉट में Amazon बताऊं। Machine Interface। परफेक्ट। Amazon machine image. अभी जो तुम लोग ये फुल फॉर्म दे बोलते हो ना मेरे को, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं सच में पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को ऐसे लगता है मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। बढ़िया। अमेजॉन मशीन इमेज है ना, वही फ्रेशर वाला स्नैपशॉट दे दिया। अब इसको पढ़ के थोड़ा समझते हैं। इज अ टेम्पलेट
दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर या एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू लॉन्च योर इंस्टेंस। अब मेरी एक बात सुनो, अमेजोन का खुद का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अमेजोन लिनक्स। क्यूबरनेटिस में बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है ना ई केस में, वो अमेजोन लिनक्स ही होता है लिनक्स के लिए। किसी ने आंसर क्वेश्चन पूछा तो जवाब देने आना चाहिए तुमको। इसके बाद AWS का AMI हो गया, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रेड हैट हो गया, सूजे हो गया, अबंतु हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गया। ये देखो अभी इसमें से फ्री वाले कितने देखते हैं। ये देखो ये मेरे फ्री वाले हैं, फ्री टीयर एलिजिबल, मतलब फोकट में तुम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो दोस्त, जो आज हम लेने वाले हैं। सी डेबियन। अभी मुझे एक बात बताओ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। किसी ने कभी अपने या किसी और के लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है क्या? एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दैट हाँ मैटर। किया है, कैसे किया किया है? है थ्रू पेन केवल ड्राइव। पेन ड्राइव। CD। करेक्ट। ये सीडी किसने बोला? अरुण तो बहुत पुराने जमाने का है यार, सीडी वीडी से इंस्टॉल किया है। इनफैक्ट मैंने भी किया है, पता है, सीडी से। आई यूज टू सिट इन अ कैफे, जाके मैं भैया लोग के साथ वहां पे बैठता था, क्योंकि मेरे को एक गेम का बहुत शौक था, विच वाज, कोई गेस करेगा बचपन में कौन सी गेम का शौक होता था जिसके लिए कैफे पे जाते थे? अभी देखो कैसे फटाफट आंसर आएंगे। बोलो। हंसी क्यों आ रही है भाई? मैं वैसे वाला कैटेगरी का नहीं हूँ, मैं GTA वाई सिटी भी खेलता था, काउंटर स्ट्राइक वगैरह भी खेलता था। तो आई यूज टू गो देयर। मतलब अभी छुट्टियां होती थी गर्मी की, पता है ना, पहले 2 ढाई महीने तो दो ही चीज होती थी, या तो क्रिकेट खेलो, या फिर अगर मम्मी पापा डांट रहे हैं तो फिर कैफे में जाके एसी में आराम से गेम खेलते बैठो। तो एक भैया थे, उनकी 12th पास हो गई थी उस टाइम पे, आई वॉज इन 6th और 7th, है ना। तो उनके पेरेंट्स ने उनको कैफे वगैरह, ये जो साइबर कैफे चलता था पहले, ओपन करवा के दे दिया, क्योंकि उनको मालूम है अभी ये भटकने वाला है। तो वैसे उनको बता दिया, तो मैंने सेटिंग लगवा ली अपनी भैया के साथ। मेरा तो काम ही था, वो गेम में मेरे को पसंद थे, तो मैं आई यूज टू गो एंड सिट एंड चिल आउट ड्यूरिंग माई समर वेकेशन। तो मैं क्या करता था, वो मेरे को ऐसे काम लगाते थे। किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, उस टाइम पे ना XP चलता था, अगर किसको याद है तो मैं XP वाले जमाने का बंदा हूँ। तो मैं वो CD वो मेरे को देते थे, उसमें सारे ड्राइवर्स कॉन्फ़िगरेशंस वो सारा होता था। मैं बूटस्ट्रैप मार देता था वो CD से, फॉर्मेट मार के खत्म, मेरा काम बन गया। तो मैं क्या करता था, वो CD उसके अंदर डालता था और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय हो जाता था। तो अमेजोन मशीन इमेज मतलब क्या? इसमें क्या कर रहे हो आप? सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये AMI मतलब क्या मालूम है मेरा? ये AMI ना, इधर पे कहीं ना कहीं जाके कोई एक सर्वर पे एक CD लगी हुई है। जब आप ये AMI चूज करते हो ना, तो ये CD समझो, अगर मैंने अबंतु की CD ली, जो आज हम लेने वाले हैं, अबंतु की CD जाएगी, ये वाला अगर मशीन आपने लिया, ये मशीन में CD जाएगी, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब समझे AMI मतलब क्या? AMI मतलब वो हमारी CD है जिसमें हमारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। या पेन ड्राइव पकड़ लो उसको अभी के लिए। अंडरस्टूड? AMI का सिंपलेस्ट मीनिंग समझ गए आप लोगों को क्या AMI होता है? नाउ लेट्स मूव ऑन। यस यस। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या? एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम क्या होता है वो बता दो। कोई भी आप सर्वर ले रहे हो, मेरा लैपटॉप चल रहा है अभी, बहुत सी चीजें मेरी चल रही है ना। तुमको नहीं लगता है मेरे को स्टोरेज लगेगा? विदाउट स्टोरेज कैन आई रन माई सर्वर? तो देखो नो। नॉट48.2 GB फ्री है मेरे पास में, ऑलमोस्ट 150 GB में से। इसमें से 50 GB तो रिजर्व रहता है सिस्टम के लिए। तो सिमिलरली AWS वाले जो भी कंसेप्ट है हमारा EC2 का, उसमें वॉल्यूम इज नथिंग बट आर दिस स्टोरेज। और ये जब इंस्टेंस लॉन्च करूंगा ना मैं, तो 8 GB का बाय डिफॉल्ट फोकट में 8 GB का स्टोरेज अपने को वो देता है, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये स्टोरेज। स्नैपशॉट मतलब क्या? किसी ने मेरे को बोला था अभी, स्नैपशॉट स्नैपशॉट मतलब Nothing but एग्जैक्ट the कॉपी। image। एक ही चीज हाँ बोलूंगा, कॉपी। इधर किसी ने बहुत अच्छा कॉपी वर्ड यूज किया है। इंडस्ट्री में अगर कॉपी आंसर देना कॉपी। है ना, तो इसको बैकअप बोलना है तुमको। देखो सेम कॉपी। आंसर है, आंसर सेम है, तरीका अलग है। देखो क्या होता है ना, कई बार ना आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाओगे, वो जो 100 रुपए वाले खुजली वाले डॉक्टर के पास जाते हैं हम, रूटीन चेकअप है ना, डे इन डे आउट, वो स्टेटिस्कोप लेके, स्टेटिस्कोप क्या होता है, टेली स्टेटिस्कोप ही होता है ना, लेके चेक करेगा, सांस लो सांस खींचो। और एक अच्छे ब्रिलियंट डॉक्टर के पास जाओगे, फर्क क्या है? बीमारी का दोनों भी इलाज बताने वाले हैं, तरीका और मेडिसिन दोनों की अलग रहने वाली है। सिमिलरली क्लाउड वर्ल्ड के बंदे जो आंसर देने वाले हैं, और जो दूसरे बंदे आंसर देने वाले हैं, वो आंसर देने में जमीन आसमान का फर्क है। कॉपी बोलोगे ना तो समझ जाएगा यार, ठीक है इसको
लाइक है ना, फ्रेशर काइंड ऑफ नॉलेज है। बट बैकअप बोलोगे ना, ये एक प्रोडक्शन ग्रेड जार्गन है। बैकअप यूज करना है तुमको, क्या बोलोगे? बैकअप। लाइफ साइकिल मैनेजर अभी के लिए छोड़ दो, अपने काम का नहीं है। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट सिक्योरिटी ग्रुप समझेंगे हम लोग। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स है, ठीक है? तो वो एग्जाम्पल अभी लेते हैं, हंसेगा नहीं कोई वैसे, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पब का, इसको बोल सकते हैं क्लब। आई एम श्योर आज संडे और मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव ऑलरेडी विजिटेड पब। मैं कभी नहीं गया हूँ, नॉलेज है बट मेरे को, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, पब में क्या क्या होता है? पब नहीं, उसको क्लब बोलते हैं, चलो। क्या क्या होता है वैसे क्लब में? अब तुम लोग मुझे एक्चुअल मत बता देना क्या क्या होता है, इन जनरिक बताओ। आज तो सैटरडे यार, तुम लोग को डीजे ये फ्लोर। आंसर। क्या बात है, देखो इसको कैसे डीजे वीजे याद आ रहा है। किसने बोला वैसे? अरुण? नहीं यार सर, मैंने नहीं भूषण भूषण। अच्छा भूषण। अच्छा भूषण। तभी मैं तो तभी कभी गया नहीं। तभी भूषण मुझे यहाँ पे कोरेगांव पार्क में दिखा था कल। बट फ्राइडे को भी जाते होगे तुम? आई थॉट कि तुम सिर्फ सैटरडे संडे जाते होंगे। एनीवेज, तो नहीं यार। मुझे एक बात बताओ, पब में क्या क्या होता है? मतलब अंदर का मत बताओ यार, उतना भी तुम बोलोगे तो यार मेरे को भी आगे सेशन कंटिन्यू करना है, राइट? तो देखो, पब में क्या होता है ना, बेसिकली पब के बाहर में क्या होते हैं? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? बाउंसर्स बोलो ना कौन इनको। से? तो ये जो दो या मोटे कौन मोटे, से? ये दो मोटे मोटे बाउंसर्स मेरे एंट्री पे, और दो मोटे मोटे बाउंसर्स मेरे एग्जिट पे। अब मुझे एक बात बताओ, अरे यार ये ब्रॉडबैंड वाले बहुत परेशान करते हैं, इनका बंद कर दिया तो भी समझ नहीं आ रही है इनको, ठीक है? चलो, तो अभी पब मेरे मेरे बाउंसर्स होते हैं, ठीक है? अब दो चीज़ है। चीज़ क्या है? एक तो मेरी पब में एंट्री रहेगी, और एक तो मेरी पब में क्या रहेगी? एग्जिट रहेगी। लाइन वाला ये कहाँ गया यार? ऑल शेप्स में अगर मैं जाऊँ, लाइन वाला शेप नहीं दिख रहा है क्यों ऐसे? बेसिक शेप। चलो छोड़ो, यहाँ से देखते हैं अगर बनता है क्या कुछ। तो उल्टा बन रहा है ना, अपने को ऐसे चाहिए। हाँ, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा बेटर है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। बचपन में मेरे को ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए ये हाल है मैंने। तो पब में ना दो चीज़ होती है, एक होता है आपका एंट्रेंस, एक होता है आपका एग्जिट। तो एंट्रेंस पे ना, एंट्रेंस पे मोस्टली, यहाँ पे लिख लेता हूँ यार मैं कहीं पे, तो इजी रहेगा अपने को। सिंबल्स वाले ने चेंज कर लिया, कनेक्शन लाइंस में है ना। तो ये है मेरे बाउंसर्स, ठीक है? अभी बाउंसर्स क्या करेंगे, देखो तुम लोग क्या करने वाले हो पता है? तुम लोग ना, जब भी कोई पब में जाते हो, तुम लोग कहाँ से जाते हो पब में? मतलब तुम लोग कोई एक प्लेस से जाते होगे, है ना? कोई भी प्लेस, कोई भी जगह होगी जिससे तुम लोग पब में एंट्री करोगे, क्लब में एंट्री करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो जगह से तुम लोग एंट्री करने वाले हो, अंदर जाने के बाद में बाउंसर्स तुमको क्या वैलिडेट करते, क्या चेक करते? टिकट। टिकट, पास अगर मैं बोलूँ, तो ये भूषण को बहुत सारा पता है क्लब में। तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू विजिट पब या क्लब टुडे और टुमारो, कांटेक्ट भूषण, ठीक है? तो अभी क्या करने वाले हम लोग पता है कि हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ में वाले हैं। अभी इसको रिलेट करते हैं, चलो। तो ये एक चीज़ तो पता चल गई कि भैया पब में घुसने के पहले आप अगर कोई भी जगह पे से आ रहे हो, तो ये बाउंसर जो रहेंगे आप लोग को वैलिडेट करेंगे कि आप ऑथेंटिकेटेड हो कि नहीं पब के अंदर जाने के लिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो सिक्योरिटी के ना, सिक्योरिटी के तीन पिलर्स है। कौन बोलेगा मुझे, व्हाट आर द मेजर थ्री पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी? एक तो लिख लेता हूँ मैं, ऑथेंटिकेशन, इसको बाद में डेप्थ में समझेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते। ऑथराइजेशन, तीसरा कौन सा है? व्हाट डू यू थिंक इज द थर्ड वन? लिख भी रहा हूँ यार यहाँ पे मैं, चलो लिख लेता हूँ। तो हु कैन टेल मी व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? Some kind of two-factor authentication or multi-factor authentication of kind. से सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अगर इसके आंसर दूं ना मैं, मान लो आपने एक घर बनाया कोई भूषण, ठीक है? और घर बनाया अपने अपने आपके पापा ने आपको चाबी दे दी घर की,
ठीक है, ये आपके पापा ने घर बनाया, आपके पापा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं घर में जाने के लिए, क्योंकि उनका घर है, ही इज द ओनर, एंड ऑफ कोर्स यू बीइंग हिज सन यू आर आल्सो ऑथेंटिकेटेड टू गो इनसाइड द हाउस। अभी मान लो आपने अरुण को चाबी दे दी, घर की चाबी दे दी, तो अरुण घर की चाबी से घर पे डाला है, अरुण घर की चाबी से घर के अंदर तो चले जाएगा, बट इज अरुण ऑथराइज टू यूज डिफरेंट रिसोर्सेज इन योर हाउस लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइक No. टीवी, लाइक वॉशरूम? No, right? You are, Definitely since you not. are the owner, since you are the owner, you are only authorized to use the resources inside the house. अरुण को भले ही मैं ऑथेंटिकेशन दे दूं आपके घर की, बट ऑथराइजेशन मैं नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब क्या? मतलब ना कोड लैंग्वेज में बात करना। मतलब क्या? अपनी जो ट्रैफिक आएगी, अगर आईटी की लैंग्वेज में मैं समझो, अपनी जो ट्रैफिक आएगी वो एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ना इधर जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब पे www डॉट पे HTTPS लगाए थे, कोई सिक्योर्ड है। इधर ना बहुत सारे अटैकर्स होते हैं जो अपनी रिक्वेस्ट को ना क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिक्वेस्ट को अटैक करते हैं। तो उससे बचने के लिए ये सब हम बाद में देखने वाले हैं वैसे, जब हम क्यूबरनेटिस चालू करेंगे, बट अभी के लिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन समझा। मतलब यू आर ऑथेंटिकेटेड विद दैट, जो भी आप पास अगर आपके पास में रहेगा, यू आर ऑथेंटिकेटेड टू विजिट फ्रॉम अ प्लेस इनसाइड द पब, यू आर ऑथेंटिकेटेड टू ड्रिंक बियर, यू आर ऑथेंटिकेटेड टू डांस, बट यू आर सॉरी यू आर ऑथराइज टू डांस, यू आर ऑथराइज टू यूज द club, but you are not authorized to hit the bartender. Are you? You are not authorized to use confidential resources in the pub. That is what authorization और authentication means. अब हमारे ना सिक्योरिटी ग्रुप वाले एग्जांपल पे आते हैं। तो बाउंसर बन गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लेस है, तुम लोग कहीं से आने वाले हो, एक जो रिक्वेस्ट है, मेरी नॉर्मल रिक्वेस्ट है जो मेरे सर्वर से आएगी, वो कहाँ से आएगी? टेक्निकल सोचो थोड़ा, रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी? Internet. करेक्ट, इंटरनेट, मतलब मेरा वर्ल्ड वाइड वेब www। और ये पब क्या बन गया मेरा? पब जो है मेरा, पब मेरा बन गया वर्चुअल मशीन। कौन सा वर्चुअल मशीन? जो नॉर्थ वर्जीनिया में लिया है हमने, एग्जैक्टली यही बन गया मेरा पब। किसका फोन आ रहा है? हाँ, तो अभी देखो नॉर्मल वाले पब में जाते नहीं हम सीधा गए भी तो कौन से पब में गए? वी वेंट इनटू नॉर्थ वर्जीनिया का पब, है ना? तो आज घर पे जाके बोलना है कि मैं नॉर्थ वर्जीनिया के पब में सैर करके आया हूँ, तो देखो तुम लोगों को क्या बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नाउ अब देखो अपने को समझना क्या है। तो सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली हमारे इंस्टेंस के लिए कैसे काम करता है पता है? वर्चुअल मशीन के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से कौन सी ट्रैफिक कैसे आ रही है उसको मैं अलाउ करूँ कि नहीं अंदर, मेरे पब के अंदर, फिल्टर मतलब मेरे मशीन के फिल्टर अंदर मैं करता है। अलाउ करूँ कि नहीं। अब वो कैसे करता है पता है? तो अ, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप बने हैं ना, ऐसे क्लिक करता हूँ उस पर। यहाँ पे दो चीज़ है, पोर्ट नंबर्स, पोर्ट नंबर। इनबाउंड रूल, हाँ वो तो बताऊंगा मैं बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे हम, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। अब इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल क्या होता है इसको नहीं पता है, तो जो अंदर आने वाला ट्रैफिक है ना दोस्त, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। उसको बोलते हैं इनबाउंड ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? जो अंदर आने वाला है बाहर से, इंटरनेट से जो अंदर आने वाली है इंस्टेंस पे ट्रैफिक, उसको बोलते हैं इनबाउंड रूल। और जो इंटरनेट से बाहर जाने वाली ट्रैफिक है ना, अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा पब के अंदर आएगा वो हर बंदे को बाहर तो जाना पड़ेगा ना, देर आर सिक्योरिटी बाउंसर्स बाहर भी रुके होते हैं जो आपको एस्कॉर्ट करते हैं। आप जब फुल टल्ली होके घूमते हो, आपकी कार तक आपको एस्कॉर्ट करते हो, वो छोड़ने आते हैं आपकी कार कार तक हो, राइट? ऐसे ही होता है पब्स में, राइट? ऐसे ही होता है, थिंग्स वर्क्स लाइक दिस ओनली। तो मतलब एक बात तो है कि जो बंदा अंदर आएगा, बाहर से हर किसी बंदे को जाना है, बट हर कोई अंदर नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल यू हैव पास, वीआईपी पास बोलो या पास बोलो। अगर आपके पास में पास नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो सिमिलरली ये चीज कंट्रोल कौन करता है? इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल। और सिक्योरिटी ग्रुप कौन है? मेरा बाउंसर है, जो अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रिक्वेस्ट को एनालाइज करेंगे। तो अभी ना जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो इसका मतलब बताता हूँ मैं कि ये चेंज करने से क्या होता है, आउटबाउंड रूल चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, आई विल लेट यू नो। नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर विद सिक्योरिटी ग्रुप? आगे बढ़े फटाफट, फिर प्रैक्टिकल यस, यस। देखेंगे। Yes. इलास्टिक आईपी इज वेरी इजी, अभी के लिए छोड़ दो, ये कवर हो जाएगा बाद में। प्लेसमेंट ग्रुप, प्लेसमेंट ग्रुप मतलब क्या पता है क्या? इजी है वैसे। गूगल डेटा सेंटर, और मैं इमेज पे जाऊँ, क्या है ना, देर आर वेरी लाइक, यहाँ पे जो ऑडियंस हमारी बैठी है, कुछ कुछ लोग इज कम्प्लीटली फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो टेक्निक मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है ना। सो डोंट वरी, आगे एडवांस टॉपिक भी आएंगे। प्लेसमेंट ग्रुप मतलब क्या?
मेरे जितने नोट्स तू दे रहा है ना, या जितने सर्वर मेरे को दे रहा है ना, एक ही रैक में थे, ताकि ना हॉप्स ज्यादा नहीं लगने पड़े, मतलब कम्युनिकेशन मेरा फास्ट हो। मतलब क्या, अगर मैं 5 सर्वर ले रहा हूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ यही प्लेसमेंट ग्रुप में मेरे को दे, यही नोड के 5 सर्वर थे। अंडरस्टूड? यूजुअली इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग विच इज की पेयर्स। व्हाट डू यू थिंक इज द की पेयर? डेमो भी डिलीट मार देता हूँ मैं, ये मैंने बनाई थी तो आई एम डिलीटिंग इट। की पेयर क्या हो सकता है? अभी एक एग्जांपल दिया यार, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के टाइम पे घर में घुसने की चाबी। बिना चाबी के किसी के घर में घुस सकते हो? अपने अपने खुद के घर में भी घुस सकते हो क्या अगर घर को लॉक है तो? नहीं घुस सकते, राइट? नेटवर्क इंटरफेसेस हम बाद में देखेंगे, आपका कवर हो जाएगा। दिस इज अ नेटवर्किंग रिलेटेड टॉपिक। अगर ये लेना शुरू कर दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े, तो आज बेसिक बेसिक वाली चीज देखते हैं। कीपर मतलब घर में घुसने की चाबी। अब वो कैसे बनेगी, कहाँ यूज होगी, वो हम सब देखेंगे प्रैक्टिकली। अब ये लोड बैलेंसर, इसको छोड़ दो, टारगेट ग्रुप को भी छोड़ दो। ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक इंपॉर्टेंट है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का कोई मेरे को एग्जांपल दे सकता है क्या? क्यों ऑटो स्केलिंग ग्रुप इसमें EC2 में लगाया है इन लोगों ने? ASG बोलते हैं इसको। इट हेल्प्स टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन। इसका कोई लाइव एग्जांपल, प्रोडक्शन बेस्ड यूज केस जो रियल लाइफ में आप लोग यूज करते हो, ऐसे का, सर ऐसे टाइप का? हॉटस्टार का, हॉटस्टार बढ़िया, नेटफ्लिक्स। बढ़िया है। मेरे को पता था हॉटस्टार नेटफ्लिक्स जैसे ही एग्जांपल दोगे, क्योंकि मैं खुद वो देने वाला था। पर अपन थोड़ा अपना वाला एग्जांपल लेते हैं ना, जियो सिनेमा, हॉटस्टार, यस यस। फिर आपको बोलता हूँ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। अभी एग्जांपल तो दे दिया है तुमने, इसमें ऑटो स्केलिंग काम कैसे करती है वो भी बता दो चलो। वो कंटेनर बेस है ना सर, पीछे से करेक्ट। कंटेनर्स ये लगे तीनों हुए चारों हैं। जो है ना, ये तीनों चारों क्यूबरनेटिस ही यूज कर रहे हैं, पता है आप लोगों को? यस These यस करेक्ट। guys are using Kubernetes only to scale their application. Let me tell you how. अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का मैच, वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज, राइट, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जिसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है। जब 30 बॉल में 30 रन बचे थे ना दोस्त, व्हेन बुमराह केम टू बॉलिंग, मैं वहां पे देख रहा था, इट वाज ओनली 2.2 करोड़ पीपल हु आर वाचिंग दैट मैच लाइव। है ना, वहां पे ऊपर टॉप राइट पे देखो, लाइव का एक ऑप्शन दिखता है कि लाइव इतने लोग हाँ देख रहे हैं। Yes, right. बट जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, so what I was saying is 2.2 crore people were only watching that, right? But the moment बुमराह टेक क्लासन का विकेट जब उसने लिया, और जब फिर कुछ तो भी 15 बॉल में 20-22 रन चल रहे थे, थ्रिलिंग मैच चल रहा था, सडनली मैंने जब देखा, रात के बहुत लेट हो रहा था, आई थिंक 11-12 कुछ बज रहे थे, 5.2 CR पीपल वर लाइव वॉचिंग दैट क्रिकेट मैच। करेक्ट? अभी ये होता कैसे है? तो देखो, इसमें दो कैच है। एक तो कि मेरा बिजनेस जो है ना 24 घंटे पीक पे नहीं चलने वाला है। मतलब अगर कोहली अच्छी बैटिंग कर रहा है, धोनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसी टाइम पे मेरे को ज्यादा सर्वर्स लगेंगे, राइट? और मैं नहीं चाहता कि पूरा 24 घंटा मैं पहले ही सर्वर लेके रखूं, और पता चला कि मेरे लोग आए ही नहीं हॉटस्टार पे ज्यादा मैच देखने के लिए। तो आई विल स्पेंड ऑन दी कॉम्प्यूटेशन। मतलब क्या, जितने घंटे मैं वो सर्वर यूज करने वाला हूँ, उतने घंटे मैं ये करूंगा, क्या बोलते हैं उसका, पैसा मेरे को पे एज यू वो मॉडल, क्योंकि क्लाउड फॉलो करता है तो मेरे को उसका बिलिंग आएगा। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया पता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाते हैं। मतलब क्या, पीक आवर्स में जब मेरा ट्रैफिक बढ़ जाएगा मेरे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, तो जितने नंबर ऑफ सर्वर्स रिक्वायर्ड है ना मेरे को उस टाइम पे रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए, उतने ला। और बाद में ट्रैफिक जैसे जैसे डिक्रीज होगा वो सर्वर्स को तो डिलीट मार दे। दैट इज दी होल एंड सोल पर्पज ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मतलब क्या, इट ऑटोमेटिकली स्केल्स इन and it automatically scales out the number of virtual machines in your cluster depending upon the requirement. Understood? इसको और दूसरे एग्जांपल से अगर समझे, क्रिकेट ग्राउंड पे ना पिच जो होती है, पिच कई दफा देखो, अभी जैसे यूएस में वर्ल्ड कप हुआ, यूएस में ना वेदर जो होता है मोस्टली बारिश वारिश कभी भी होती है, तो वहाँ पे जो ग्राउंड्समैन है ना, वो पता है प्लास्टिक डालते हैं पिच पे ताकि पिच खराब ना हो। और जितनी देर के लिए वो बारिश होती है उतनी देर के लिए वो लोग प्लास्टिक डालते हैं। जब बारिश बंद हो जाती है तो वो ग्राउंड्समैन क्या करते हैं, वो जो प्लास्टिक होता है वो वापस पिच पे से निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केलिंग करते हैं। तो ये स्केलिंग किसका होगा EC2 के केस में? EC2 मशीन्स का। क्यों? आपका एप्लीकेशन किधर डिप्लॉयड होने वाला है? ये जो भी आपका गूगल दिख रहा है, जूम दिख रहा है, ये किधर पे डिप्लॉयड है? दिस इज डिप्लॉयड ऑन AC2। EC2 ओनली। तो AC2। ऑटो स्केलिंग किसका होने वाला है? EC2 का ही होने वाला है।
So all the major OTT platforms like your Jio Cinema, your Netflix, Amazon Prime, Disney Hotstar, every kind of this application uses Kubernetes. अब समझा Kubernetes, DevOps और ये EC2 बूम में क्यों है। तो अगर ये पीछे की खिचड़ी समझ में आ गई तो तुमको नहीं लगता है काम करने के लिए मजा आएगा और चीजें समझने के लिए मजा आएगा? डेफिनेटली। डेफिनेटली, बट सिर्फ मजे मत लो यार। तो अभी मजे नहीं लेंगे हम, अभी क्या करेंगे, हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। सो गो इन द इंस्टेंस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अभी लॉन्च इंस्टेंस पे मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दूंगा मैं? वेलकम टू क्लाउड वर्ल्ड। क्लाउड वर्ल्ड नहीं यार, वर्ड नहीं, वर्ल्ड। अब ये नाम दे रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली पता है, एक मशीन है मेरी, यहाँ पे देख रहे हो मशीन का नाम एडमिन है। ये मैं एडमिन जाके इधर नाम चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं एक मशीन ले रहा हूँ और मशीन को नाम दे रहा हूँ क्लाउड वर्ल्ड। सिंपल। सिर्फ ये फिजिकल की जगह वर्चुअल है, कनेक्ट करने वाला हूँ मैं इसमें, बट दिस इज माई वर्चुअल मशीन। कितने मशीन चाहिए मेरे को फॉर नाउ, फॉर द प्रैक्टिकल? एक मशीन मेरे को बस है अभी, अभी के लिए आई बी टेकिंग ओनली वन इंस्टेंस। एक मशीन दूंगा मैं। अब मेरा आता है Amazon मशीन इमेज। मैंने क्या बोला था, व्हाट डू आई मीन बाय AMI? क्या ये जो टेम्पलेट। लिस्ट दिख रही है, ये देख के क्या समझ रहा है AMI मतलब क्या? इट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम, Operating system. है ना। वो CD है, CD को मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को अबंतु का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अबंतु बहुत बढ़िया है यार ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन आई started learning DevOps, at that time I used to deploy my instances on 18.04। 18.04 दिख रहा है क्या देखो? नहीं। अभी आप लोग मुझे बताओगे, ये जो अबंतु का ये जो था ना 7.6, जब मैंने कॉग्निजेंट छोड़ा ना, तो इन लोगों ने 7.9 पे अपग्रेड कर दिया था ये रेड हैट का। ये अबंतु का जो 18.04 वर्जन था, इसमें से जो ये 18 होता है ना, 18, इसको बोलते हैं मेजर वर्जन। लिनक्स की भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ, इसको बोलते हैं माइनर वर्जन। आप मुझे एक बात बताओ, ये लिस्ट में ना, ये लिस्ट में, और ये आंसर आना चाहिए अभी तुम लोगों को, ये लिस्ट में मेरे को 18.04 क्यों नहीं दिख रहा है? और दो ही मेरे फ्री टीयर में, मतलब फोकट में मेरे को ये दो ही दे रहा है, वो भी लेटेस्ट वाले। 18.04 क्यों नहीं है? और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया तो मेरे को 20.04 था पहले, अभी वी आर ऑन 22.04 डेवलपमेंट क्लस्टर पे। तो मुझे एक बात बताओ, 18.04 क्यों नहीं है अभी यहाँ पे लिस्ट में? लास्ट ईयर अगर तुम लोग आते ना, बैच में ज्वाइन करते तो 18.04 पे प्रैक्टिस करवाता मैं तुमको। बताओ व्हाई वी आर नॉट सीइंग 18.04? तुक्के मार लो यार। आउटडेटेड वर्जन। करेक्ट, परफेक्ट। इतना सिंपल आंसर को इतना टाइम लगा रहा है, आउटडेटेड नहीं। अच्छा, अभी हम जब क्लाउड वर्ल्ड वाले बच्चे आंसर देंगे ना इसके, तो इसको तुम लोग बोलोगे ऑब्सोलीट। सेम वर्ड है, प्रोडक्शन के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? यही तो डिफरेंस है देखो। ऑब्सोलीट। दूसरे बंदे आउटडेटेड बोलते हैं तो बोलते हैं भाई तू 5-6 लाख का पैकेज ले ले। अपने बंदे ऑब्सोलीट बोलते हैं तो बोलते हैं भाई 15 नहीं 20 ले ले। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस गाइस? सो क्या बोलना है इसको? ऑब्सोलीट बोलना है। क्या हो गया ये? ऑब्सोलीट हो गया है। ये वर्जन क्या हो गया? डेप्रिकेट हो गया है। इसीलिए अभी हम आज क्या करने वाले हैं, आई विल बी टेकिंग 22.04। वो भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये आपके ट्रेनर आपको बता देंगे, ठीक है? कंफर्म करो यहाँ पे। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और AMI ID मतलब क्या? अभी जैसे भूषण है, भूषण की आइडेंटिटी है, मान लो बहुत सारे भूषण होंगे ना यहाँ पे, तो भूषण की आइडेंटिटी उसका सरनेम। वैसे ही अरुण ने तो कुछ आइडेंटिटी रखी नहीं है, क्योंकि अरुण ने अरुण को ही रखा है। तो ये वैसे ही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ये इंस्टेंस नंबर की आइडेंटिटी है ना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है AMI ID। मतलब अमेजोन उसको ये ID से पहचानता है। सिंपल। नाउ लेट्स कम डाउन। अब मेरी इंस्टेंस की फैमिली कौन सी लेनी है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे फ्री टीयर में मेरे को कितना दे रहा है वो? एक वर्चुअल CP दे रहा है, 1 GB मेमोरी दे रहा है ना। फ्री टीयर है, 750 आवर्स दिस इज ऑफरिंग फ्री सर्विसेज। तो फ्री टीयर में मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं बड़ा के लूँ मशीन, जो कि हम क्यूब एडम हम लोग इस पे देखने वाले हैं, T3 मीडियम, तो इसमें हम 2 वर्चुअल CPU 4 GB का मेमोरी लेंगे। बट इट इज नॉट इवन कॉस्टिंग अस $1। सी दिस इज कॉस्टिंग अस 0.09, विच इज ऑलमोस्ट इन सेंसेस, राइट। और जो प्रोडक्शन ग्रेड हम लोग इसके देखेंगे ना सर्वर्स, तो हम लोग हो सकता है, देखो हम लोग ऐसे टाइप के सर्वर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन पे, C5 एक्स्ट्रा लार्ज।
4 वर्चुअल सीपीयू 8 GB मेमोरी, बट इसका कॉस्टिंग देखो ज़्यादा है। अंडरस्टूड। पर आज अपने को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए टीटो माइक्रो इज फाइन। अब कौन बोलेगा मेरे को कीपैड क्यों चाहिए, बताओ। अभी बताया मैंने कुछ देर पहले। ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन। परफेक्ट। मतलब क्या, मेरे इंस्टेंस के अंदर मेरे को लॉग इन करने के लिए कुछ चाहिए ना दोस्त। ये पहले तो मैं मेरी की जो है ना, की जो है मेरी, यार कितने कॉल्स आते हैं यार। लेट मी डिलीट द की मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। और कोई है क्या डेमो नाम से, ये देखो, ये भी की मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये ऊपर भी भी की है मैं, एक डेमो। अच्छा ये भी है ना cloudworld.pem, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ डाउनलोड्स में ही रखना। तो मैं इधर क्रिएट न्यू पे क्यू पेयर करूँगा, मतलब मैंने एक नया घर बनाया है। आप नए घर के साथ आप नया लॉक तो ऑफकोर्स बनाओगे, नए लॉक के साथ आप नई चाबी बना रहे हो। कीपैड का नाम मैं दे रहा हूँ डेमो, दिया नहीं क्या मैंने, हाँ डेमो। और इसको मैं बोल रहा हूँ RSA एल्गोरिथम आप यूज करो एनक्रिप्शन के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक में जिसने भी पढ़ा है कॉलेजेस में पढ़ा होगा अपने RSA एल्गोरिथम क्या है, कौन पूछने नहीं वाला है। अगर फिर भी जानना चाहते हो ये एल्गोरिथम के बारे में कैसे एनक्रिप्शन करता है, तो गूगल पे जाके देख सकते हो। नाउ वी विल बी नीडिंग टू ओपन SSH, मतलब एजेंट लगेंगे अपने को। एजेंट मतलब क्या, अभी मेरा लिनक्स का सर्वर है, राइट। मेरे लिनक्स में और विंडोज में और एक डिफरेंस है, बताओ क्या। टेक्निकल डिफरेंस बोलो मेरे को, लिनक्स और विंडोज में और एक डिफरेंस क्या है। ये लो मैंने डिफरेंस सामने खोल दिया तुम लोगों को। ये मेरा विंडोज है, ये मेरा लिनक्स है, क्या डिफरेंस है। GUI. बहुत जी है। भाई, बहुत बढ़िया। मतलब क्या, विंडोज में मेरे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और लिनक्स में मेरे पास क्या है, मतलब विंडोज में मेरे पास ये भी है। विंडोज में भी CLI है मेरे पास, पावर शेल, CMD, कमांड लाइन इंटरफेस। Interface. लिनक्स में GUI मिलता है क्या दोस्त, नहीं। तो लिनक्स लिनक्स के अंदर ये CLI से कनेक्ट करने के लिए, विंडोज से ये लिनक्स का CLI कनेक्ट करने के लिए अपने को एक ना ऐसे थर्ड पार्टी एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे पट्टी, पट्टी सुना होगा तुम लोगों ने, पट्टी पुट्टी जो भी बोलते हो। Yes. पर हम लोग पट्टी यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो अभी ना पचकांडा हो गया, वो कोई यूज नहीं करता है। हम लोग यूज करने वाले गिट बैश, या फिर हम लोग यूज करने वाले VS कोड, या फिर हम लोग यूज करने वाले WSL ubuntu, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ऐसे। बट बेस्ट है ना गिट बैश है, तो क्या करो, अपने को लगने वाला ही है। तो ऐसे जाओ इधर गिट बैश डाउनलोड, और विंडोज पे जाओ, ये डाउनलोड्स पे जाओ। अब आपका 32 बिट है कितना है मेरे को वो नहीं पता, इसको डाउनलोड कर लो यहाँ से और इंस्टॉल कर लो, और ये विंडोज़ का गेट बैश आप डाउनलोड कर लो। इससे आप, हम लोग क्या करने वाले बेसिकली, CLI से एक्सेस करने वाले हैं। तो उसके लिए कौन सी फाइल लगती है अपने को, कौन से टाइप की। अगर पट्टी यूज़ कर रहे हो तो PPK डाउनलोड करो, पेम में कुछ तो भी कन्वर्ट करो, फिर एक्सेस करो। ये सब एलिमिनेट करने के लिए मैं गेट बैश बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए, ठीक है। गेट बैश डाउनलोड कर लो, क्रिएट कर लो न्यू कीपैड डेमो नाम की। तो ये हो गई मेरी, देखो डाउनलोड यहाँ पे demo.pem डाउनलोड्स डायरेक्टरी में डाउनलोड हो गई। अब VPC का कंसेप्ट आपको क्लाउड के ट्रेनर जो है वो लेने वाले हैं, तो VPC अभी के लिए इग्नोर मारो। अब मैंने क्या बोला था, मेरे पब के अंदर पब ले लिया मैंने, पब का नाम दे दिया। आज सब लोगों को क्लाउड वर्ल्ड के पब में ना कुछ चीज़ें फ्री है, ठीक है। तो एंजॉय, वेलकम टू क्लाउड वर्ल्ड। और क्लाउड वर्ल्ड की मैंने चाबी ले ली पब की। अब पब के बाहर ना, मतलब मैंने मेरे क्लाउड वर्ल्ड के बाहर ना सिक्योरिटी टीम बिठा रखी है, मतलब एडमिन टीम हमारी, पूरे 2-3 बंदों की एडमिन टीम है ना। तो वो जो 2-3 बंदों की एडमिन टीम है वो क्या करने वाली है, कितने लोग ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिकेटेड है, वो चेक करने वाली है। तो अभी ना मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ, देखो यहाँ पे नया बना रहा हूँ। उसको क्या बोल रहा हूँ, ये पब में क्या बोलूंगा मैं, अगर बंदा www डॉट, यानी कि अगर बंदा SSH करके आए ना, SSH का मतलब किसको पता है गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय SSH। Secure shell. ये Secure shell. बढ़िया, Yeah. बढ़िया। ये जो डेफिनेशन वाले आंसर देते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो, है ना। आई नेवर अप्रिशिएट एंड एंटरटेन दिस डेफिनेटरी काइंड ऑफ आंसर। सिक्योर शेल तो फुल फॉर्म हुआ, क्या लगता है यहाँ पे SSH क्यों लिखा हुआ है, क्यों यूज करते हैं हम लोग। सिस्टम में लॉगिन करने के बताता हूँ मैं, टू Encryption. लिए। एग्जीक्यूट कमांड्स
रिमोटली ऑन अ सर्वर या ऑन अ वीएम। मतलब क्या, एसएसएच है ना, लॉगिन करके हम एसएसएच से लॉगिन करते हैं हम, और लॉगिन करके हम लोग ना वो रिमोट सर्वर पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जो हम करने वाले हैं कुछ देर में। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एसएसएच से आया ना तो अलाउ करो उसको, किधर पे, ऑल आईपी पे। ये अभी ना सिक्योरिटी ग्रुप थोड़ी देर में क्लियर होगा, डोंट वरी। एक नया बना रहा हूँ मैं, लॉन्च विजिट 3 नाम का, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, 8 GB की स्टोरेज देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्री है, फ्री टियर एलिजिबल, कैन गेट अप टू, अच्छा 30 GB कर दिया इसको भी, चलो बढ़िया है। 30 GB तक के फोकट में तुम लोग यूज कर सकते हो, बट अभी मेरे को 8 GB की रिक्वायरमेंट है, तो मैं डिफॉल्ट 8 GB लेके चलता हूँ। एडवांस डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये इन डेप्थ कवर होने वाला है, ठीक है। अभी के लिए अपने को जितना ज़रूरी है उतना हमने इंस्टेंस के लिए देख लिया है। अभी देखो, एक इंस्टेंस मैंने लिया यहाँ पे, रिव्यू अगर मैं करूँ तो देखो, ये इस टाइप के क्लाउड फॉर्मेशन के बैकग्राउंड में उसने टेम्पलेट्स बना दी, जेसन टेम्पलेट्स, यहाँ से वो लॉन्च करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? ये देख लो, कैनोनिकल कंपनी है जो अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करती है, ठीक है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे, देखो क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप, इनिशियलाइज कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, लॉन्चिंग, लॉन्च इनिशिएशन, है ना, बोल रहा है मैंने लॉन्च कर दिया है, अब जाके चेक कर लो। तो मैं इंस्टेंस में जाऊंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, आपने गौरव के देश में, गौरव के शहर में, गौरव के कंट्री में आपने एक ना पब ओपन कर लिया अपना, क्लाउड वर्ल्ड नाम का। तो आज सबको घर पे जाना है और सबको बोलना है आपने कि बिना वीज़ा के, बिना टिकट के मैं यूएस जाके आया हूँ। घर पे आपको बोलना है, और वहाँ पे बहुत सारी unglimasti.com करके आने वाले हैं अभी हम। तो देखिए रनिंग में आ गया मेरा इंस्टेंस। इंस्टेंस की मशीन कौन सी ली थी हमने, T2 माइक्रो। ये थोड़ा सा टाइम जाएगा इसको, अलार्म स्टेटस तब डिस्प्ले होगा। अवेलेबिलिटी जोन हमने डिफाइन नहीं किया था, तो उसने 1A में डाल दिया। अब ये जो पब्लिक डीएनएस आईपी वाईपी दिख रहा है, आईपी एड्रेस क्या होता है, हु नोज व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? ये देखो पब्लिक आईपी दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत यूनिक इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट, मतलब किरण क्या बोल रहा है, अभी जैसे किरण हो गया जिसने अभी, और एक किसी ने आंसर दिया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो देखो क्या होता है, किरण नाम के बहुत बंदे हैं, राइट। और ये हम 20 साल से सुनते जा रहे हैं ना, शाहरुख खान का वो डायलॉग किरण वाला। अब ये वाला क्लाउड वर्ल्ड वाला किरण है, मेरे को कैसे आइडेंटिफाई होगा, देसाई उसका सरनेम है। सिमिलरली जो आईटी है इंडस्ट्री में, जो अंदर मतलब सिस्टम जो है ना, सिस्टम सिस्टम ये मशीन को कैसे पहचानेगा, ये मशीन की आइडेंटिटी है उसका आईपी एड्रेस। जैसे अपना नाम आईपी एड्रेस होता है, वैसे इनकी ये रैंडम डिजिट के जो आईपी एड्रेस है ना, ये इनकी आइडेंटिटी है सिस्टम के लिए। अभी अगर किसी ने EC2 यूज किया होगा, प्रीवियसली किसी ने इंस्टेंस लॉन्च किए होंगे, हु कैन टेल मी हाउ कैन आई कनेक्ट टू माई EC2 इंस्टेंस using SSH. यूजिंग SSH? करना कैसे है, बट क्या करना पड़ेगा? आईपी एड्रेस, SSH आईपी private key and बढ़िया then username @ और ये बढ़िया। public IP. तो विकास ने सही आंसर दिया है, बट जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, क्लाउड ही अपने को खुद बताता है। ये बताओ कैसे, इंस्टेंस पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो, 4 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो डायरेक्ट मैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से कर सकता हूँ, सेशन मैनेजर करके एक थर्ड पार्टी एजेंट है जो डाउनलोड करना पड़ेगा या कनेक्ट करना पड़ेगा उसको विदाउट SSH की, तो ये यूज कर सकता हूँ। एक तो डायरेक्ट कंसोल से मैं क्रिएट कनेक्ट कर सकता हूँ एक्सेस देके, और मेरे पास जो है SSH का अगर कोई क्लाइंट है, लाइक पट्टी, लाइक गिट बैश, लाइक अगर विंडोज का केस है तो RDP, तो मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास SSH क्लाइंट कौन सा है, गिट बैश। गिट बैश मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये क्या बोल रहा है, आपका ये इंस्टेंस आईडी है, मतलब क्या, AWS को, अपने को तो नाम पता है क्लाउड वर्ल्ड, बट AWS को कैसे पता चल रहा है क्लाउड वर्ल्ड का मशीन है, ये उसकी इंस्टेंस आईडी है। अंडरस्टूड? अभी वो क्या बोल रहा है, SSH क्लाइंट को ओपन करो, मैंने बोला ओपन कर लिया मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है, लोकेट योर प्राइवेट की फाइल, जो कि है demo.pem, मतलब घर के अंदर घुसने की चाबी है ना, उधर जाओ आप। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ls-lrt, मेरी चाबी इधर दिख रही है क्या? नहीं, ओके, तो मेरी चाबी किधर है पता है, मेरी चाबी होगी, downloads में. यस, तो मेरा डाउनलोड्स फोल्डर यहाँ पे है। मैं इधर से आता हूँ डाउनलोड्स में, और फिर मैं चलाता हूँ ls-lrt, मतलब लिस्ट कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो देखो ये रही मेरी demo.pem की फाइल, ये चाबी है मेरी, ये आज बनाई है मैंने जुलाई 13 को, ये आज बनाई है, ये मेरी चाबी है। ये टाइम पे बनाई है मैंने 12:03 तो ये क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है लोकेट करो, अभी रन दिस कमांड,
टू इंश्योर योर की इज नॉट पब्लिकली वैल्यूएबल। मतलब क्या, बेसिकली इसका बोलने का मतलब क्या है, जो अपने किरण का घर है ना, उस घर की चाबी है ना अरुण के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, वरना अंदर अरुण गया तो समझ लो तबाही है। क्या बोलते हो यानी अरुण? परमिशन चेंज करना, करेक्ट, परमिशन चेंज। करेक्ट। मतलब अरुण ये सही है क्या? बट आप घर में किरण के जाके ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। नहीं नहीं। बट किरण किधर का बंदा है? किरण क्लाउड वर्ल्ड का बंदा है, तो किरण हमेशा क्या करेगा पता है? किरण आपको चाबी देगा ही नहीं, ठीक है? चाबी किरण देगा ही नहीं। तो उसके लिए चाबी की परमिशन किरण ने चेंज कर दी। कैसे? ध्यान देना यहाँ पे, अभी रीड राइट रीड 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 है, ये लिनक्स में कवर होगा, डोंट वरी। ऊपर ऊपर समझते हैं। chmod कमांड इज टू चेंज दी परमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल। तो ये लिनक्स में तो एज अ फाइल ही ट्रीट करेंगे ना हम इसको, demo.pem फाइल। सर तो सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। हम्म, अब ये परमिशन जो चेंज करना है वो डाउनलोड फोल्डर में चेंज करना है या बाहर भी कर सकते हैं अब परमिशन? मुझे एक बात बताओ, आपकी फाइल कौन से फोल्डर में है? डाउनलोड। बस, तो डाउनलोड फोल्डर में आपकी फाइल है, तो मैं कमांड क्या एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? देखो, मैं कमांड को बोल रहा हूँ इसके मॉड चेंज कर, चार मतलब रीड ओनली परमिशन, रीड ऑन। है ना? और किस फाइल पे? तो यस ये सर। फाइल का नाम पास कर रहा हूँ। अब ये फाइल कौन से लोकेशन पे है? डाउनलोड पे। अगर डाउनलोड। मैं ओके। तुमको तुम्हारा आंसर बताता हूँ मैं, अगर कुछ कीडी डॉट डॉट करके मैं बाहर आऊँ और फिर ये कमांड डालूँ ना, अरे यार डाउनलोड नहीं, फिर ये कमांड अगर मैं डालूँ, कॉपी करूँ इसको, राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे, क्या बोल रहा है देखो, कैन नॉट एक्सेस। क्यों? कि भैया demo.pem की ऐसी कोई फाइल ही नहीं है ये लोकेशन पे। फाइल किधर है मेरी? फाइल डाउनलोड डाउनलोड। लोकेशन पे। तो अगर डाउनलोड में मैं करूँ ये कमांड, तो देखो ये कमांड चल गया। तो आप देखो, जब एग्जीक्यूट की मैंने कमांड, पहले थी रीड राइट रीड रीड, अब जब एग्जीक्यूट की मैंने, तो सिर्फ रीड की प्रिविलेज है दोस्त। मतलब चाबी सिर्फ मैं, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरे घर वाले, बस इतने ही लोग यूज कर सकते हैं। तो बस परमिशन मैंने चेंज कर दी। अब आती है बारी मेरे इंस्टेंस को कनेक्ट करने की। तो क्या बोल रहे हैं देखो, पब्लिक डीएनएस लो और कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करो? SSH करो, चाबी डालो। अबंतु क्यों लिखा है यहाँ पे? जो मशीन हमने ली है, इसका नाम अमेजोन ने उसका नाम क्या दिया है इधर? अमेजोन उस मशीन को किस नाम से पहचान रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अबंतु के नाम से। और ये मेरा पब्लिक आईपी। तो इसको इजीली करना है ना, और तो कुछ नहीं करना है, इंस्टेंसेस पे आना है आपको। टेकिंग बिट टू लोड। इंस्टेंस पे आना है, पब्लिक आईपी पे क्लिक करना है, ठीक है? गो ईयर। अभी मेरी जिधर की है ना, की वही लोकेशन पे आना है आपको, SSH करना है, ठीक है? अबंतु @ पहले Ctrl L देके क्लियर करता हूँ सर। अबंतु @ ये पब्लिक आईपी। अब आप लोगों को मुझे बोलना है कि ये लॉगिन होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी क्या बोल रहा है पता है? तेरे पास चाबी है क्या? फिंगरप्रिंट छोड़ना चाहता है क्या? मैं बोलूंगा यस। अब आप लोगों को मुझे बताना है परमिशन डिनाइड का एरर क्यों आया हमको। सी, की का नाम की है। मिसिंग की। बराबर। बेसिकली अभी अरुण क्या कर रहा है पता है? अरुण इज ट्राइंग टू फोर्सेबली एंटर इनटू किरण's हाउस विदाउट कीज। क्या कर रहा है पता है अरुण? फोर्सेबली एंटर करने की कोशिश कर रहा है किरण के घर में। अंडरस्टूड? अब देखो, अब अगर किरण का, अगर वो बेस्ट फ्रेंड है और कुछ काम की वजह से किरण ने उसको चाबी दे दी, तो मेरी चाबी का नाम क्या है? डेमो.पी। यस, डेमो टैब डॉट पी टैब देना है। टैब दे दोगे, खुद ब खुद कमांड ले लेगा। सिक्योर शेल से इंटरेक्टिव मोड में ये की के साथ ये सर्वर पे लॉगिन कर बोल रहा हूं मैं उसको, तो एंटर। तो ये लो दोस्त, जैसे ही क्या नाम है अपने इसका यार, किरण ने अरुण को चाबी दी, ये लो, किरण के घर में अरुण इज ऑथेंटिकेटेड। आया कि नहीं? अब अरुण देखो इसके साथ क्या क्या उंगली मस्ती करता है। अरुण पूछ रहा है, कैलेंडर में देख रहा है डेट कितनी है, तो वो डेट बता रहा है, ठीक है? टाइम के साथ डेट बता रहा है। उसके बाद में अरुण उसको पूछ रहा है कि कौन हूं मैं, आईने में जाके अरुण को बोलता है अबंतु। क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मेरा? अबंतु। अभी समझा? कैलेंडर पूछूंगा, अच्छा कैलेंडर का कमांड इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? कैलेंडर नहीं चलेगा। अब अरुण उसको पूछ रहा है कि तू कितने टाइम से जिंदा है, बता जरा। देखो बोल रहा है 8 मिनट हो गए मेरे को, ये टाइम पे मैंने लॉग इन किया था। कौन मुझे बताएगा ये 6:44 मतलब? 6:44 कौन सा टाइम है ये? अपने यहाँ तो 12:15 बज रहे हैं।
EC2 लॉन्च किया था तब का जिस टाइम। जोन में लॉग इन किया उसका टाइम। नहीं दोस्त, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखो। इंटरव्यूअर पूछता है अंदर, डॉकर जब डॉकर पे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो पूछेगा डेटा सेंटर का जो टाइम होता है ना, कंटेनर का टाइम, वो कौन सा होता है, तो ये याद कर लो। दिस इज यूटीसी टाइम जोन। डेटा सेंटर का टाइम जो होता है ना, यूटीसी टाइम जोन, आईएसटी नहीं रहता है। हाँ, इसको चेंज कर सकते हो आप, बट बाय डिफॉल्ट ये यूटीसी टाइम जोन होता है, और 5.5 घंटा कुछ पीछे होता है अपने से, 5.5 या 6 घंटा पीछे होता है। तो आप समझा, अब याद रहेगा ये यूटीसी टाइम रहता है। तो जब लॉग्स देखोगे ना आगे, जब ट्रबल शूटिंग करोगे क्यूबरनेट्स में, तो हमेशा ये यूटीसी टाइम के साथ ही रिलेट करना पड़ता है तुमको। बहुत बार हमको हमको भी ये कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग गूगल पे टाइम देखते हैं कि ये 6:44 यूटीसी आईएसटी में कितना होता है। अंडरस्टूड। अब मेरे को ये सर्वर से बाहर आना है, अब बाहर आ गया। अब मैं मेरे सिस्टम को पूछता हूँ मैं, क्योंकि कौन सा यूजर लॉग्ड इन है यहाँ पे, एडमिन। अंडरस्टूड Admin. नाउ, अंडरस्टूड नाउ। अब देखो, Yeah. अब मैं जाता हूँ वापस से मेरे घर में, मेरे घर में नहीं, सॉरी, किरण के घर में जा रहे हैं हम लोग। किरण सॉरी, हाँ, डोंट माइंड प्लीज। मेरे को पता है मेरे को अथॉरिटी नहीं है तुम्हारे घर में आने की, बट क्या करें यार, ये अरुण के साथ रह रहे के ना 3 हफ्तों से आदत लग गई है। तो अभी मैं क्या करूँगा पता है, आई विल गो टू, इसका सिक्योरिटी ग्रुप देखना है ना मेरे को। सिक्योरिटी में मैं जाऊँगा, इसको कौन सा वाला सिक्योरिटी ग्रुप दिया है हमने हमारे पब को, तो बोल रहे हैं इसको लॉन्च विजिट 3 वाला बाउंसर हैंडल कर रहे हैं, है ना। अब मैं काम करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में आता हूँ। लॉन्च विजिट 3 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे उसका आईडी देखना था ना यार मेरे को। वापस जाता हूँ इंस्टेंस पे, एंडिंग विथ 6FA, 6FA वाला सिक्योरिटी ग्रुप देखो यहाँ पे। अरे नीचे है क्या, है कितने ना सर, सारे हैं। ऊपर ऊपर है ना, वही वाला, यही वाला, हाँ लॉन्च हाँ विजार्ड 3 हाँ. आया ना ऊपर, एक लॉन्च मिनट, एक हाँ, मिनट। यही विजार्ड वाला 3। सर, यस, वही ये वाला क्लिक ना। नीचे नीचे। अब हाँ ये वाला। इसको नाम देते हैं यार, ये कंफ्यूजन होता है ना, देखो ऐसे कंफ्यूजन होता है। क्लाउड वर्ल्ड करके इसको एक नाम दे दिया मैंने। बाकी डिलीट कर दो यार, खिचड़ी वाले डेमो सब निकल जाओ तुम लोग साले। क्लाउड 9 झिंगा विंगा क्या क्या ये, डिफॉल्ट वाला रहने दो, ठीक है। तुम लोग जब इंस्टेंस लॉन्च करोगे, एक डिफॉल्ट वाला रहेगा, बट डिफॉल्ट वाला अपने को यूज नहीं करना है। कर सकते हो उसको लेवरेज, बट मैंने नया सिक्योरिटी क्रिएट ग्रुप कर से दिया। बिलिंग चलता है क्या सर? नहीं चलता ना नहीं, बिलिंग? आई थिंक नंबर ऑफ कितने तो सिक्योरिटी ग्रुप ना, ये है, फ्री है। अच्छा, ओके ओके। डिफॉल्ट विल नॉट डिलीट। इसको एसोसिएट कोई रिसोर्स है नहीं, तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। ये डिलीट नहीं होगा, देखो मैंने ना डिफॉल्ट वाले भी गलती से सिलेक्ट कर हाँ दिया था, बट वो डिलीट नहीं हुआ। अब है मेरे पास में दो, एक तो क्लाउड वर्ल्ड नाम का, और ये। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पब के जो सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो ये बाउंसर है। तो ये बाउंसर को मैंने क्या बोला था, एसएसएच से, मतलब कोई वर्ल्ड वाइड वेबसाइट से अगर एसएसएच के अंदर से कोई आया ना, कोई भी एसएसएच से आया चाबी लेके, पोर्ट 22 पे काम करता है एसएसएच, किसी ने बोला ना, तो याद रखना कि एसएसएच वर्क ऑन विच पोर्ट, इट इज अ टीसीपी 22। प्रोटोकॉल एंड इट 22. वर्क्स ऑन पोर्ट 22। 22। पोर्ट मतलब क्या, हर सर्विस जो है ना आईटी में एक दूसरे से बात करती है ऑन अ सर्टेन पोर्ट, तो वो पोर्ट ओपन करना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ पता है, ये ग्रुप को कर देता हूँ डिलीट, और इसको रूल को कर देता हूँ सेव। अब इधर आता हूँ मैं, अब देखो इधर भी एक भी कमांड चल नहीं रही है मेरी सी। अब देखो क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल 1 बजे चलेगा क्या? कल 1 बजे? 1 बजे किसी का कुछ प्लान लग रहा है, हु इज दैट? ठीक है, 12:30 बजे। ओह, 10:30 बजे। लुक्स लाइक समवन इज स्पीकिंग ऑन फोन। गाइस ऐसे टाइप में ना अनम्यूट कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूंखार बच्चे बैठे हैं, है ना, पब वाले बच्चे, तो थोड़ा संभाल के। तो देखो जैसे ही मैंने डिलीट किया दोस्त, क्या किया इसने, देखो लात मार के बाहर निकाल दिया। मतलब क्या, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जब मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा, यहाँ पे जब मेरे बाउंसर्स ने देखा कि भैया आप जहाँ से आ रहे हो आपके पास में तो पास ही नहीं है अंदर जाने का, तो आपके पास में पास नहीं है, तो बाउंसर क्या करते हैं, अपने को उठा के फेंकते कि नहीं फेंकते। तो बस सिक्योरिटी ग्रुप में अपने इनबाउंड रूल क्यों इंपॉर्टेंट है वो पता चला। अब मैं एडिट करता हूँ इनबाउंड रूल, ऐड रूल करता हूँ। कस्टम टीसीपी था शायद, राइट, पोर्ट 22 पे काम करते हैं इसको, एसएसएच था SSH। पोर्ट 22 पे। इसको बोलता हूँ जहाँ से भी लोग आ रहे हैं ना, ऑल ट्रैफिक, अगर इसको मैं यहाँ पे माई आईपी करूँ ना,
तो सिर्फ मैं मेरी मशीन से एक्सेस कर पाऊंगा। सी ये मेरी मशीन की आईपी है, सिर्फ मेरी मशीन से एक्सेस कर पाऊंगा। बट मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट से जहाँ से भी आ रहा है आप कर लो उसको, सेव कर लो उसको। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे मैं आया, इट शुड अलाउ मी टू लॉग इन। isn't it allowing me? See, देखो ये बता रहा है। अब समझा तुमको वाई एसएसएच इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब अंदर तो आ गए, बाहर जाने वाली ट्रैफिक देखो। बाहर जाने वाली ट्रैफिक को मैंने क्या कर रखा है पता है? ऑल ट्रैफिक क्यों कर रखा है यहाँ पे बाहर जाने के लिए? क्योंकि दोस्त जो अंदर आ रहा है पब में आपके सर्वर पे, उसको बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वापस? बोलो। यस, जाना पड़ेगा। डेफिनेटली, तो उसके लिए करना ही है आपको। और दूसरी चीज और एक बतानी थी, मैंने जो इंस्टेंस लिया था उस पर क्या था, 8 GB का स्टोरेज मैंने लिया था कि नहीं? सी आई हैव टेकन 8 GB का स्टोरेज। दिस इज नथिंग बट माई दिस स्टोरेज। अंडरस्टूड? सो एवरीबडी इज क्लियर विद टुडेज प्रैक्टिकल, सबको समझ गया? तो अभी ये प्रैक्टिकल जब कुछ भी नहीं है, बहुत चिल्लर प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं करना है। इंस्टेंस के बाद में ना टर्मिनेट करना ना भूले, वरना अकाउंट पे जो बिल बढ़ेगा ना उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। वैसे तो बहुत छोटा इंस्टेंस है, बढ़ेगा नहीं बिल, बट इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस के बाद में अपना वो इंस्टेंस टर्मिनेट कर दो। और अगर किसी से बदला निकालना है ना आपको, तो उसके AWS के क्रेडेंशियल लो, ऐसे 10 इंस्टेंस चालू करो T3 2 एक्स्ट्रा लार्ज के, और छोड़ दो। जो बिल मारेगा ना उसको मज़ा आ जाएगी। सो नेक्स्ट सेशन में यू हैव टू गिव मी अ रिमाइंडर टू, हम लोग ये AWS के $300 की क्रेडिट की लिंक भरेंगे हम, ठीक है? फ्री में $300 का फायदा करा देता हूँ तुम लोगों को, क्या बोलते हो? सो एवरीबडी सर ये अंडरस्टूड? चैनल आपने ये यूज किया ना, गिट गिट बैश गिट गिट बैश, गिट यस। तो देखो गिट दो बैश। तीन चीज़ें लगने वाली है, वो इंस्टॉल करके रख लो प्रैक्टिकल्स के लिए। एक लगेगा गिट बैश, एक लगेगा VS कोड। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ना दोस्त, ये दो तीन चीज़ों पे ही काम होता है। सी दिस इज माई विजुअल स्टूडियो। कोड जो लिखोगे ना आप इसका, जैसे अभी मैं बताऊँ, ओपन करता हूँ मैं। ये देखो, ये जो मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल्स वगैरह लिखी है ना, ये प्रीवियस बैच के लिए जब भी लिखी होगी मैंने, ये देखो ये सारा कोड हम लोग इसी में लिखते हैं, वर्चुअल VS कोड में। अरे यहाँ से ही सर डेवलपर लोग रन करते ये जो है ना, ये जो तुमने इसमें लिखा है ना, हैं। ये लैंग्वेज मतलब यामेल, ठीक है। YAML, हाँ YAML फाइल है ना। मैं ये पूछना चाहता था, ये जो कंटेनर का YAML फाइल है ना, वो YAML फाइल डेवऑप्स इंजीनियर को लिखना पड़ता है क्या? आई मीन कि मतलब डेफिनेटली लिखना मॉडिफिकेशन। पड़ता है, डेफिनेटली लिखना ओके। पड़ता है, बट स्क्रैच से नहीं। एक अच्छा। सिंगल क्लिक में वो यामल फाइल मैं तुमको बताऊंगा कैसे लिखना है, एक सिंगल क्लिक में। वही तो मजा है दोस्त, यू हैव कम टू अ राइट प्लेस, डोंट वरी। लिखना पड़ता है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल क्लिक में तुमको सिर्फ मॉडिफाई करने हैं अंदर के नाम, दैट्स इट। कस्टमाइज करना है उसको। वो ओके। सब हम और जब क्यूबरनेटिस चालू करेंगे तब देखेंगे। ये हेलम चार्ट भी उसमें यूज होता है क्या? हेलम चार्ट भी हेलम इसमें चार्ट को। नहीं, उसको हेल्म चार्ट बोलते हैं। और हम लोग हेल्म हाँ चार्ट हेलम से ही, चार्ट। हेल्म चार्ट से ही सॉरी हम लोग हेलम चार्ट। डिप्लॉयमेंट जो CI/CD जेनकिंस पे देखने वाले हैं ना हम, वो हाँ हाँ। सारा हेल्म चार्ट से देखने वाले हैं। बता दूं क्या? तो देखो नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा। ऑफकोर्स यार, क्वेश्चंस तो होने चाहिए। ये देखो, ये तुम्हारा हेल्म चार्ट। बताओ और क्या चाहिए? ये देखो, ये लिख रखा है सब तुम लोगों के लिए। पर ये जब हम लोग वो स्टेज पे जाएंगे, क्या है ना, देखो एक सेशन ना दूसरे सेशन से काफी ज्यादा लिंक्ड है। तो वो लिंक को ब्रेक मत करो। एक सेशन जब सुनोगे तो नेक्स्ट सेशन समझ में आएगा आपको। देखो आर्गो सीडी भी। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट क्वेश्चन। ये पूछो। जो डेवऑप्स का काम है ना, ज्यादा करके कंटेनराइज बेस्ड एप्लीकेशन पे होता है क्या? मतलब मैक्सिमम काम ये बोल रहा हूँ। सी डिपेंड करता है, अभी मुझे नहीं पता ना आपकी फैमिली में आप वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हो कि नॉनवेज ज़्यादा खाते हो। तो डिपेंड करता है ओके। कि कंपनी है जो क्लाइंट है उसका रिक्वायरमेंट कैसे है, कि उसको डेवलपर ओके। जो चाहिए ज़्यादा करके काम उसका क्यूबरनेटिस पे है, CI/CD पे है। ऐसा नहीं कि हाँ सारी जगहों पे सब कुछ काम करने मिलेगा, अनलेस यू हाँ आर हाँ लकी लाइक मी, है ना। हाँ हाँ। बट यूजुअली बहुत कम कम जगह पे काम होता है। जैसे अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है जो उस पर क्यूबरनेटिस में बहुत ज़्यादा काम है। दूसरा अच्छा। प्रोजेक्ट था उस पर CI/CD पे ज़्यादा काम था। एक हाँ प्रोजेक्ट था हाँ। जिसपे प्रोमीथियस ग्राफाना मॉनिटरिंग वगैरह पे ज़्यादा काम था। तो डिपेंड्स, क्लाइंट के ओके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके। गॉट इट थैंक्स। तो देखो ये वॉल्यूम जब मैंने कर दिया ना, तो ये वॉल्यूम भी डिलीट हो गया। सी अंडरस्टूड नाउ? सो एवरीबडी इज क्लियर विद टुडे सेशन? कुछ क्वेश्चन, यस कुछ डाउट? यस। तो सरप्राइज दे देगा फिर तुम लोगों को। दे दो ना यस। सर। ऑफर आया क्या? Yes. यस। व्हाट्सअप वाला डेटा यार तुम लोग शेयर मत किया करो। यस। सो वन ऑफ द पर्सन गॉट ऑन ऑफर येस्टरडे। देखो ये कल की चैट है।
एक वोडाफोन का है और एक इसको आया CTS का। तो लास्ट वीक व्हेन आई वाज इन ऑफिस, कोई बंदा आया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन। कोई बंदा आया था एंड इनका तभी सेकेंड राउंड क्लियर हुआ था एंड विद इन अ वीक ही मैनेज टू टेक ऑफर ऑफ, कितना है तुम लोग पढ़ोगे और तुम लोग बोलोगे मुझे, नीचे देता हूँ, देखो कल ही आया, शायद 11 परसों आया। कितने का ऑफर है? 24 lakhs, साढ़े साढ़े 24 24। 50। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना इसमें कि वापस से तुमको ट्रस्ट इशू है एंड ऑल दैट क्रैप, वैसे ये खराड़ी WTC में कंपनी, ऑल दैट क्रैप अगर तुमको ऐसे लग रहा रहेगा ना, आई विल अरेंज अ सेशन विद हिम। तुम लोगों को लाइव ना मेल खोल के, जो कंपनी का मेल आया है ना, आई विल आस्क हिम टू शेयर दैट, क्योंकि तुम लोग को हो सकता है कि तुम लोग अभी ये लेवल तक सोचो कि भाई सर ने शायद इनसे मंगाया होगा, है ना, ऑन ऑल दैट क्रैप, बट ऐसा नहीं है। सी आई हैव आस्क्ड हिम टू गिव मॉक टू दिस पीपल, और ये मॉक की वजह से क्या हुआ है, इनको हेल्प हुई है। सो इनका अगर और तुमको सेशन वगैरह देखना इसका है, इनका एक्सपीरियंस था क्या सर, इनका, हाँ ये बंदे इनको का? है अराउंड 4+ का एक्सपीरियंस बताया इन्होंने। हाँ वैसे तो नहीं, एक्सपीरियंस है उनको, बट नहीं डेवॉप्स में इज अ मतलब, फ्रेशर। हाँ डेवॉप्स में बोल रहे डेवॉप्स हो, में डेवॉप्स। फ्रेशर है क्या? डेवॉप्स में फ्रेशर है। ओके ओके, और वो पिछला एंड एक्सपीरियंस लिटरली किसमें था? लिटरली ही टुक ओनली अ मंथ फॉर प्रिपरेशन। प्रीवियस ओके ओके। एक्सपीरियंस इनका ना अमेजोन में था, एज अ वर्चुअल क्लाउड VCS होता है ना, वर्चुअल क्लाउड सपोर्ट, क्लाउड यस एसोसिएट, यस वो यस। टेक सपोर्ट वैसे या टाइप या में। या। सो वी हैव ओके लेवरेज्ड ओके द सेम एक्सपीरियंस। तो अगर तुम लोग को ऐसा ओके। लग रहा होगा कि मैंने उसको बोला होगा कि व्हाट्सएप पे तू भाई मेरे को दे दे, है ना, ये कर दे, तो अब लाइव तो मेल पे जो कंपनी भेजेगी HR, वो तो गलत नहीं रहेगा, राइट? तो आप लोग वो भी देख सकते हो। आई ट्राई टू अरेंज अ सेशन, अगर वीकडे में तुम लोग अवेलेबल हो तो वीकडे वीकडे में बोलूंगा, या फिर कल के सेशन के बाद थोड़ा सा एक एल्यूमिनाई डिस्कशन उनका अरेंज करते हैं, फ्यू गाइस आर ओके। या डेफिनेटली सर। तो आपके जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल। कि सर जो है बोल बच्चन डालते हैं, चूरन डालते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा ना कल, क्या बोलते हो? ये नो नो नो, वी ओनली ट्रस्ट यू सर। अबे यार ट्रस्ट पे गेम होता है, डोंट ट्रस्ट मी यार, आई डेफिनेटली, ये तो बहुत थैंक यू फॉर सेइंग दिस, बट ट्रस्ट योरसेल्फ। इफ अ पर्सन लाइक मी कैन डू इट, इफ अ पर्सन लाइक सोहेल कैन डू इट विद इन अ मंथ, हम तो बहुत एवरेज बंदे हैं यार, तुम लोग तो फिर भी बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो, व्हाई कांट यू डू Sir, इट? way you are guiding, it's definitely going further, good things happening और in our. दूसरी चीज पता है क्या है, आई हैव टोल्ड यू एन एग्जांपल ऑफ अ मराठी मीडियम का बंदा, इफ ही कैन टेक एन ऑफर इन 9.5, व्हाई कांट यू? जस्ट वो फेथ होना चाहिए, वो बिलीव होना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एवरीथिंग इज डूएबल, एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। और जब चीज़ों को समझ के आसान तरीके से पढ़ेंगे ना, तो डेवॉप्स बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस, राइट? इफ अ 4 ईयर का एक्सपीरियंस गाय कैन टेक 24.5, 25 लाख का पैकेज एट द एज ऑफ 26, डू यू थिंक दिस इज नॉट लाइक बैड? मतलब दिस इज अ रियली गुड अचीवमेंट, राइट? 25 लाख इज नाउ वर्थ। और जो भी बोल रहा है ना मार्केट, कॉल उठा उठा के परेशान हो गया हूँ। देर आर 5 अदर कंपनीज जहाँ पे उसका ऑलमोस्ट लास्ट राउंड चल रहा है, राइट? एंड ही विल बी एबल टू क्लियर इट। अभी मंडे को उसका हिताची में इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है, राइट? सो दैट्स हाउ थिंग वर्क, कि राइट जगह पे राइट डिसीजन, राइट लोगों से गाइडेंस मिल जाए ना, तो ऐसे होता है। आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्रेडिट, बट ऑफ कोर्स ही हैज द पैशन, वो डेडिकेटेड है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, तो ही अचीव्ड इट। और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, क्या बोलते हो? The more offers you get for me, I am the happiest person, right? So I have to meet him today. I'll meet him, I'll guide him how to do things, है ना, फर्दर कैसे प्रिपरेशन करना है, और कंपनी में जाने के बाद क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है। सो आई गाइड हिम एंड आई ट्राई टू अरेंज अ सेशन विद हिम, प्रॉब्ली टुमारो, सेशन के बाद कल आप लोग कर लेना बात फिर, ठीक है? सो एवरीबडी क्लियर विद Okay. टुडे सेशन? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, और वी आर गुड टू रैप अप? No doubt, sir. नो डाउट्स? I just wanted to ask you, actually, I am from the manual tester. सो So the whatever the today's session you took, it's a very like bouncing for me. Little bit I understand in it. Lina, Yeah. to answer your question, so the trainer who will be conducting your cloud के sessions ना, he was a damn experienced guy into a manual and automation testing. तो ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ लेना, बट दिस इज वेरी बेसिक यार, बहुत बेसिक है। आप वापस से एक बार ही सेशन देख लो, रिकॉर्डेड सेशंस तो आपके पास है,
तो you go ahead and watch the session again, you'll get a fair idea. फिर भी अगर कुछ डाउट है तो ask me in the next session, we'll try to address it. Okay, sir. Thank you. Sure. One question. So the guy who got the 24 lakh package, what was his Mhm. previous package that he got? Like what was the previous package he was working? So I think I am not the right person to answer it, Maria. I will Okay. arrange this session directly with him and you can ask directly with him. Okay. And is that the only offer that he got, or there are multiple offers? There are multiple in pipeline. So we are countering now. Okay, okay. So the first offer he got from was Vodafone. I think 18. मैंने तुमको Vodafone का भी बताया शायद अभी ना शेयर करके. Mm-hmm. So the first one was with Vodafone and then उस पे counter I asked him to take at least 20 to 23. Then he got 24.5 with CTS. Okay. All right. Thanks. Okay. If no more questions, I think we are good to wrap up the session. या फिर है कुछ? Nice, sir. Thanks. Perfect. All right, guys. Have a good